Hello. Today we have Rishabh Yadav from IIM Ahmedabad on Talkfest. The Wise Bard company, Sudip Bajpai. That's a long name, but then that was the idea. Uh, Rishabh speaks really fast, and I believe that is partially because his brain works really fast, and partially because by the time he met me, it was already too late for me to rectify that. And I hope he doesn't change at all. Over the next 1 hour or so, we all, regardless of our age, have a lot to learn from this young man. Brilliant, and still very, very, very grounded and very clear in what he wants and how he wants to go about his life. So please listen to him, get inspired, and please तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लव कर दो, हेट कर दो. नहीं, हेट मत करो, ऐसा कुछ काम हमने किया नहीं है. Just stay connected with the Wise Part company. Carry on. Hey Rishabh, Hi, sir. how are you? I'm good. I'm good. Have you been? It's been long, but yes, thankfully we all managed to survive the pandemic, and here we are. Pandemic was tough. Very tough. I mean, it seems you're still working from home. Yeah. I'm still working from home, thankfully. Means they've been trying to call us, but then they've given us a choice. They Okay. probably still have their expense. So I'm currently working in Reliance Retail. What's Okay. happening is we're trying to launch a new product, so I'm working on that. So we don't really Okay. have a specified office space there. So Mhm. we have to go once or twice a month. So they call us for a week, and then we have our meetings and everything. Rest of the time we are free to do because they don't have an office space for us. So we are happy. I am happy that I'm home. I mean, one of the biggest groups in the nation, and they don't have office space for people for like us you. at least, because that's the thing, na, they have it's distributed for all the existing companies, and because we are upcoming new, so we Mhm. don't. So even when we do go there, we have to work out of other companies, Other other companies. Reliance Retail's offices. Okay. Yeah, but I don't mind. Really, I'm very happy Not at about all. it. I'm जब getting to तक be जब तक lunch में घर का खाना मिल रहा है, Yes, exactly. nobody should mind it. Nobody should Exactly, mind. exactly. And बीच में एक आध हफ्ते जाने मिल जाता है, तो of course change of scenery भी हो जाता है थोड़ा सा. Quite balanced. Quite balanced. Yeah. Okay, बढ़िया. So Rishabh, I remember when we met. It would be 2015 end or 16 का start था probably, and there was a huge buzz around Rishabh Yadav, city topper in CAT. That I still remember a celebrity moment for you when one of the girls from one of the random batches she met and said, "You are Rishabh Yadav." Yeah, exactly. Sir. That used to happen. It used to happen. Exactly. And even those things are very weird because 15 days back, matlab, even my classmates won't have recognized me because I was a very chupchap wala bacha, won't talk much, just do my stuff and leave. And then uske baad random people coming up to you and talking to you like that. Matlab, it just shows ki, how people's minds change just because of Exactly. probably one result. They start seeing you in a different light just because you've done What was the percentile, if you remember? 99.99, sir. Oh, 99.99. I don't think we have had that after you here in Lucknow. I think it was the first one there as well because It was. they were quite plastered on the newspapers and everything as well. Yes, So, yes. I was very normal, but my family was very happy. So probably that was the only way, the main way in which I was getting happy. कि चलो ये लोग खुश हैं, ठीक है, अपना भी. Did you expect it? I mean, did you expect it? No. I'll be very honest. Even still, people ask me कि मतलब what would you suggest to someone? So I still say luck plays a huge part in it. Because even you will remember, so there were students there who I always thought were probably better prepared than me. But at least I thought that. I'm not. There's no guarantee to. So yeah, exams are. It's just 3 hours. I think. It is, yeah, those 3 hours. Yes. Exactly. It's got a lot to do with luck. One thing I think helped me a lot was थोड़ा पता नहीं if it comes through the chat or not, but I am very calm in my mind. So even if I did struggle with initial questions in the exam, I know friends of mine who just the moment they struggled with 2 or 3 questions, it was like कि गया ही. They couldn't come back. They couldn't come back. Yes, sir. I think I was lucky enough about that कि ठीक है 2-3 नहीं हुए. I have a very good opinion. ये नहीं हुए आगे हो जाएंगे, अगला हो जाएगा. So that is one thing I always feel is very important, and of course luck plays a part no matter how hard you try. If there is no luck. There are people who are always trying harder than you, but then ultimately, yeah.
Yeah, exactly. So you had a schooling from So sort of grown up in Bareilly. Bareilly. Yeah, so I've born and brought up in Bareilly, so I was there till class 12. Mhm. Then I did my engineering from UPES Dehradun. I did my Mhm. petroleum engineering, and then Mhm. I'd come to for my class, and then for my classes I was there in IIM Lucknow for my fourth year. Okay. Uh, uh, were you very academic right from the start? I mean, if you remember anything of your school days. Uh, Not the probably I think people will find it funny, but I keep bringing back luck. Till class eighth and ninth, I was very I was a very I'll say academically I was average. okay. Okay, top 20 percentile, top 25%, which is fine with me. Mhm. But yeah, but I was very naughty. There were instances when I was about to be expelled from school. I'm not sure if I should be अच्छा talking about things अच्छा like इतनी हद तक and seriously, like, I do not. There were times my sister was a head girl in school and she was हाँ. announcing that कि ये लड़का मतलब rusticate हो जाएगा because I'd done something अच्छा very stupid. the real sister Yep, she was a announcing head that girl. Yes, there was three of us there and okay all of us would be rusticated. So the principal had called her to announce, मतलब सुबह की morning में announce हुआ कि these kids will be rusticated. So the rest of you please be in line. But thankfully they relented. They called my parents. I still remember the day. Probably that was one big turning point for me. My mom came and she was crying there, and I saw her. And then when I went back home, I thought, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ये life में ज्यादा हो गया हाँ this ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया. हाँ And probably that was one. मतलब somehow it's on you. You can always find good and yes bad. So probably that turned me around quite a lot. कि नहीं यार मतलब पढ़ाई में मैं एवरेज तो हुई हूँ वो भी तब जब बिल्कुल मेहनत नहीं करता था. बट अगर मैं थोड़ा हाँ अपना माइंड कंट्रोल तो हाँ या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन है तो हाँ 8 9 तक वेरी एवरेज. 10th में अगेन एकदम से मेरे दिमाग खुला एंड आई स्टडीड हार्ड एंड हमारे ईयर से ही सीबीएसई में सब सीजीपीए स्टार्ट हुआ था तो ओके या उससे पहले परसेंटेजेस याद परसेंटेज थे. हाँ तो 2010 में आई पास आउट ऑफ क्लास 10 इन सीबीएसई. मेरा 10 on 10 सीजीपीए आया बिकॉज अगेन आई वर्क हार्ड. एकदम से मेरे साथ ये होता है शायद मे बी व्हेन आई लुक बैक एट इट नाउ आई थिंक शायद जब व्हेन द स्टेक्स आर हाई I then you might put want in to more get serious. yeah Yeah. yeah yeah Because उससे पहले I was not. And then again 10th के बाद I crashed, slam bang बुरी तरह 11 12 okay बिल्कुल नहीं पढ़ा and thus couldn't get into IIT. Even after everyone thinking I could have gotten in. And looking back at it, even I think I could have, but had I prepared hard enough, but I didn't. That was one regret that lived with me while I was in BTech. People said कि drop कर ले and you can sort of get into an IIT. And even I felt I could have gotten into one. But I thought कि यार एक साल का value बहुत ज़्यादा होता है. And I मतलब again I'm very what do you think is safe player. मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था. तो I said नहीं start करते हैं. Let's go. UPS में मिल रहा है. People said it's ठीक ठाक college. It's not the world's best college. It's an average college. And I'm being honest. I don't mean to praise the college. And then शायद हाँ but that regret lived with me कि यार मैंने 12th बेकार कर दिया. My family had huge expectations. I had a huge expectations of myself. And maybe इसीलिए शायद that के लिए I was थोड़ा ज़्यादा serious. And of course, as I discussed my sister थोड़ा time पहले, she had done CAT in 2013 15 and I'm coding for. That was always in. okay so in 10 the performance went up in 11 12 it came down and probably that put a blot on the CV. It would have an IIT on that which of course we all believe that you could have easily sailed through that but J is funny. All these one day exams are funny. What they do to you under pressure in those 2 3 hours, nobody can explain that. Okay. I assume that you were sharp with sciences and math. Maths specifically, yeah. Okay. I've won, again, not to brag, but then yeah, I won Olympiads and everything in maths. I've been blessed with maths. Okay. Because again, thoda sa backstory, but my sister was very weak in maths. She would Okay. hardly pass with 40 50 marks. So she's 5 years older than me. So Uh-huh. she's been a big inspiration even throughout our chat. I'll keep bringing her up Yeah, again and yeah, yeah. again. We So she we was we like, have already heard a lot, but now we want the people to hear about it. Yeah. yeah, exactly. Yeah, sir, you have heard a lot of stuff. Mm. तो वही था कि she was very weak in maths. तो उसका था कि Yeah. यार मेरी maths अच्छी नहीं है, but मेरे भाई की बहुत अच्छी होगी. She always lived with that. तो छोटे से ही I think I wasn't taught English or science or anything. बेटा Okay. maths करो, बेटा maths Math करो, करो. बेटा maths करो. And somehow that helped because I'm still अब तो इतना यूज होता नहीं but हाँ हाँ. छोटे पे maths was fun because it was numbers कि हाँ मुझे निकाला 19 into 17. It used to be somehow मतलब मेरी दीदी का जो डर था उसने शायद इतना सिखाया मुझे कि I started enjoying it.
तो आई यूज्ड टू गेट एकदम इतना खुशी होती थी, अरे 1917 323, वाओ मैंने बता दिया तुरंत विदाउट हैविंग टू यूज अ कैलकुलेटर। दीज थिंग्स वेरी फेल्ट गुड। तो इसी तरह से मैथ्स छोटे से सर थोड़ा लकीली अच्छा था, ओके। and that really helped a lot. अच्छा अच्छा, मतलब there are people like me in the world who for their life they can't solve a mathematical problem. What I mean, as a kid, suppose you have a kid who is around 10, 11, 12, whatever, and running away from math. What do you suggest? Um, I've been in these shoes की running away from things like 11 12 में used to run away from physics and I thought कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये मैं नहीं हो कुछ भी सकता। कर लूं नहीं हो सकता। एचसी वर्मा मैंने पी ली खा, मतलब काट डाली एंड देन उसके बाद भी जैसे ही मैं कुछ भी बैठता था पहले ही क्वेश्चन में अटक गया, नहीं होता। तो आई हैव बीन दैट, दैट आई थिंक अंडरस्टैंड। Probably one thing is don't look at what again I realized later in how I did physics as well कि मैं भी ना सिर्फ आंसर के पीछे भागने लगता था कि यार जल्दी जल्दी ना करके आंसर ले आते हैं एंड देन बस अगले सवाल पे चलते हैं, खत्म हो जाएगा। वन थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज कि फॉरगेट द आंसर फॉर सम टाइम, मतलब आंसर विल कम विल नॉट कम ठीक, बट मैन लुक एट द प्रोसेस, दैट्स हाउ आई हैव लुक्ड एट थिंग्स। एंड मैथ्स तो मतलब हाँ। ऑफ कोर्स आपको आप अपना एग्जांपल दे रहे हैं सर, बट मैथ्स का बहुत लोगों को फील्ड होता है। Yes. I've grown up with a sister who had a, तो आई नो, मतलब दिखा दो इनकी, अरे भाई इसके अलावा कुछ भी करवा लो मैं कर लूंगा मैथ्स। तो आई फील कि इट्स वन शुड ऑलवेज लुक एट मोर ऑफ इट, यार प्रोसेस समझ लो हम लोग का, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर एंड स्पेशली उस एज में 10th 11th 12th में क्या अब 16 17 ओल्ड होते हो तो ऑफ कोर्स एकदम रश होता है कि नहीं नहीं Yes. जल्दी करो एंड इसके बाद फेसबुक भी चलाना है, इसके हाँ बाद हाँ, अब तो वो भी जल्दी करना है। दिखाना Yes, yes. Today some Korean band has released their songs. So बस मेरे घर वही पे सुबह से झगड़ा हो रहा है कि give me the pad, और हम नहीं देंगे। एग्जैक्टली That- एग्जैक्टली that- वही वही। तो, हाँ मतलब ऑफ कोर्स मेरे 10 साल से ज्यादा हो गए तो हम्म, थोड़ा आर्केई साउंड करेगा फॉर एनीवन लिसनिंग आज के हम्म, इस ग्रुप में, बट हाँ तब ये सब इतना इतना नहीं ज्यादा था। नहीं हाँ, नहीं था कि सही सर, बट नहीं था, बट स्टिल मतलब चीजें थी कि हाँ चलो खत्म करते हैं, खेलने जाएंगे, दो घंटे distractions, हाँ, क्रिकेट। distractions were always there, always there. एग्जैक्टली सर, अब हाँ, बस ये लोग घर पे इन लोगों के रहता है, हम्म, हम्म, मोबाइल में रहता है, हम लोग का बाहर रहता है। तो हम्म, हाँ अब इट्स मोर ऑफ की हाँ यार ए आई हैव टू फेस, लुक यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम मैथ्स, मतलब ठीक है यू कैन हेट इट बट देखो हम्म, एग्जाम तो दोस्त देना ही पड़ेगा yes, एंड पास तो yes, करना ही है। तो हम्म, द क्विकर यू रियलाइज इट द मोर यू विल स्टार्ट टू फेस इट। वरना हम हम्म, लोग को ये लगता है कि छुप लेते हैं, अरे चलो मैथ्स पढ़ना है, कट चल के इंग्लिश निकल पढ़ जाएंगे। लेता हूँ, हाँ, हाँ, बच के निकल जाएंगे। ये अगेन ह्यूमन टेंडेंसीज है, नॉट ब्लेमिंग एनीवन फॉर दिस हम्म, हम्म, एंड बी लुक एट द प्रोसेस यार, मतलब समझो कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम्म, आंसर आ जाता है ना तो वो मोमेंटरली तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, अरे हम्म, वाह ये कर हम्म, लिया। मैंने एचसी वर्मा 2 बार करी थी एंड आई थॉट वाह मैंने एचसी वर्मा कर लिया, अब तो आईआईटी में कुछ नहीं है। और जब मोमेंट में अपने कोचिंग के 3 घंटे के पेपर देने बैठता था ना, लाइक कुछ नहीं होता था because I was running after answers. I was never running after the yes. process back then. And that was a big fault in me, which I realized later. Thankfully, CAT tak I'd realized this and I could work on it. But Mhm. look So at the process. basically spend more time on concepts, understanding them, maybe enjoying that entire, as you said, entire process more than actually running after the answers. Okay, that is something that youngsters, especially my daughter, should learn. I asked this question for that. अच्छा, मतलब मैं उसको दिखाता रहता हूँ, मिलाता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। People like you have done wonders in the acads, and she's kind of growing up in an environment where IPMAT and CAT and IIMs, ये vocabulary मतलब कॉमन है। नो प्रेशर्स ऑन हर, बट एटलीस्ट बच्चे को पता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ओके, सो good with numbers, okay with sciences, you understand your mind. So engineering was not forced upon, it was. नहीं सर, क्योंकि पॉइंट ये था कि 10th के अच्छा, बाद still. हाँ हाँ, नहीं इट वाज नॉट फर्स्ट अपॉन मी, 10th के हाँ, बाद अरे क्या अच्छा है इसका मैथ्स अच्छा है इसकी बायो, दैट्स हाउ इंडियन हाउसहोल्ड्स टेक that इट, is how we work. Yeah, that is how we work. हाँ, 10 on 10 सीजीपी आ गया तो चलो भैया बरेली में टॉप मार लिया, टॉपर है, पेपर पेपर में आ गया तो भैया हाँ, अब हाँ, तो मतलब घर वालों के मन में हो गया कि आईआईटी ही करेगा, बट सेकंडली खुद भी देखोगे तो क्या होगा, मैथ्स हम्म, अच्छी है बायो अच्छी नहीं है। हम्म, कॉमर्स का तो सोचा भी नहीं था, नाउ आई थिंक बैक एंड आई थिंक कि हैड आई टेकन कॉमर्स आई कुड हैव सिव्ड अनदर ईयर इन माय लाइफ डूइंग बीबी और समथिंग, बट ठीक है, लेट but ठीक है। बायगॉन्स बी हाँ, बायगॉन्स। you still are running after that 1 year. हाँ बिकॉज वही था ना, क्योंकि सबसे सोच ही इतनी नहीं थी कि कॉमर्स के बारे में सोच भी लूं मैं कि अरे मैथ्स हम्म, अच्छा हो गया टॉप मार लिया, चलो अब तो आईआईटी ही करोगे, एंड मतलब घर वालों ने भी मान लिया खुद ने भी मान लिया, खुद इट भी मान वाजंट लिया। रियली हाँ, फॉलो। माय फैमिली इज थैंकफुली वेरी रिलैक्स अबाउट दिस कि हाँ अगर मैं ड्रॉप ड्रॉप भी लेता कुछ लेता दे वुड हैव सपोर्टेड, नॉट एन इशू,
हाँ ये था कि नहीं, आई टुक अप मैथ्स अच्छा है तो चलो बेटा साइंस करते हैं, हम्म, आईआईटी नहीं निकला तो यूपीएससी कर लो है, हम्म. देखते हैं जाता आगे। Okay, you appear for JEE or other exams. You get through your UPS admission process. You are there on the campus. Uh, did you enjoy your engineering in the initial days? एक्चुअली मतलब पहला एक दो मतलब दैट्स हर्ट्स मी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ इट, बिकॉज़ यूपीएस थोड़ा महंगा कॉलेज भी है, बट हाँ. प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। बट हाँ मेरे को सर आप पढ़ाई में मतलब मे बी व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि यार मुझे तो इंजीनियरिंग समझ में ही नहीं आती है, व्हिच हैपेंस विद प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल। इतनी ज्यादा मतलब जैसे पेट्रोल, ओके आई डोंट नो इफ आई सेड इट अर्लियर, रिलेटेड है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, यूपीएस का वैसे ब्रांच है तो उस सेंस में अच्छा था। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एकदम अलग हो जाता है, इट्स नॉट बहुत ज्यादा बेसिक इंजीनियरिंग। जैसे मैं था आई वाज गुड इन कंप्यूटर्स, तो मैंने सोचा था कि चलो कंप्यूटर्स वगैरह में अच्छा हूँ। अगेन दीज आर थिंग्स आई एम थिंकिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाइल आई वाज देयर नहीं बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था। स्ट्रगल तो था, आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड इट वाज नॉट अ स्ट्रगल, बट अगेन थैंकफुली आई एम समवन जो मतलब मार्क्स ले आता है, पता नहीं मे बी टिपिकल इंजीनियर इफ यू कैन से दैट कि भले कुछ कुछ कर समझ लेंगे. नहीं आ हाँ, रहा कुछ कर बट नंबर लेंगे. ले आते थे, नंबर ठीक ठाक आ जाते थे, मतलब अगेन नॉट अ टॉपर बट हाँ टॉप 25% में बने रहते थे, तो घर पे भी इज्जत बनी रहती थी। बट हाँ इफ यू कुड हैव आस्क्ड मी आफ्टर एग्जाम की, अगर ये कोई पूछ लेता कि अच्छा ये कैसे, अच्छा ये एग्जाम है तो तुमने कर लिया बेटा, बट ये आता कैसे आंसर, मैं नहीं बता No, पाता, तो no clue. बस करना आता था, which is very wrong, which is very wrong way of doing it। मैंने ऐसे इंजीनियरिंग की है, नॉट प्राउड ऑफ इट, बट हाँ ऐसे ही साथी की है, Uh, तो आई डिडंट रियली एंजॉय इट इतना पढ़ाई के बेसिस से। देहरादून में थे but गुड सिटी। those were good 4 years. हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, I दैट mean, वर वेरी गुड 4 years। uh, how do you how do you prepare yourself for the coming 3 years when in the very first year you realize that God ये कहाँ फंस गया मैं. ये तो हाँ मतलब ये काफी ज्यादा मुझे लगा था कि हाँ, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये काफी ज्यादा मुझे बुरी तरह लगा था I'll be honest। हाँ, हाँ. अब सर ये प्रॉब्लम था कि चॉइस क्या है, ये मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं क्या बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बचपन से ही बहुत प्रैक्टिकल, हमारे माँ बाप हमें बना देते हैं कि बेटा ठीक है तुझे नहीं मजा आ रहा, अब क्या एक साल बाद अगेन आई डेंट हैव द करेज टू गो टू माय फादर एंड से कि पापा मुझे इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा है, भले मैं 3 इडियट्स देख चुका था कि मुझे इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ वो रहा बस है, मैं खुद वो बस मूवीज में रहता है. That's वो it. मूवी में था, हाँ The मतलब the आई only डोंट, the only truth is कि अब्बा नहीं मानेंगे. That is the only true बस line. दैट इज द ओनली ट्रू लाइन, वो ना मानेंगे। सर पॉइंट है पहले साल में महंगी पढ़ाई थी, वहाँ 3-4 लाख लग गए पापा के, यार मतलब खुद को लगने लगता है कि ठीक है कैसे ना कैसे करके जॉब तो लेना ही है। Yes. दैट इज हाउ क्लास हाँ, पीपल आर ब्रॉट अप कि मतलब हाँ, भाई पैसा कमाओ है, मतलब हम्म, ये सब हटाना है। हम्म, तो हाँ तो कभी हिम्मत बड़ा टफ था, एंड आई थिंक समहाउ वेरी लकी आई कैन से कि मेरे थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग एट कैट, क्योंकि मैं एज आई सेड अर्लियर मेरी सिस्टर डिड इन 13 हाँ, 15 हाँ. कोडी कोड बैच, तो मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में ही उसका रिजल्ट आ गया था कैट का। Okay. हाँ Okay. तो उसका एंड कोडी कोड हो गया था, एंड मतलब हमारी फैमिली के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी कि भाई क्या कोडी कोड जा Any रहा weight है, is huge. Any राइट weight एग्जैक्टली। देखिए. Yeah. नहीं आई एम सॉरी, आई गॉट इनटू अ काइंड ऑफ अ जोक इन माय ओन कि अब मैं अपनी बहन को चढ़ाता हूँ कि देख तू कोडी कोडी थी, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी ऑफ कोर्स, ऑल द कॉलेजेस आर गुड। बट हाँ वही था कि हाँ तो फर्स्ट ईयर में उसका निकला था, तो दैट sort of came into my head. I used to watch her prepare in the first semester as well। जब मैं घर जाता था वो बैठ के बेचारी रात में पढ़ रही है, दिन भर जॉब हम्म, करती थी and रात में बैठ हम्म. के 1 से 5 जग के पढ़ाई करती थी, फिर सुबह जॉब पे जाती थी। तो ऑफ कोर्स इट वाज टफ That फॉर हर, was तो दैट that was pure hard work. Pure hard work. इट्स प्योर हार्ड वर्क। एंड उस बच्चे की एज आई सेड अर्लियर उसकी मैथ्स भी इतनी अच्छी है, तो Exactly. टू वॉच हर डू दैट एंड आई न्यू की, एंड मतलब अगेन थोड़ा शायद पता नहीं बिलीवेबल लगे लोगों को या नहीं, आई रिमेम्बर मैं मतलब विद नो बैकग्राउंड नथिंग एट ऑल, जब वो बैठ के ना क्वेश्चंस कर रही होती थी कि इसलिए मेरा क्वेश्चन की जयकॉल ने 5 स्टेप्स लिए, इसने 3 स्टेप्स लिए, और ये इतनी देर बाद चला तो वो किस स्टेप कितने मिनट्स पे जाके कितने स्टेप्स पे जाके मिलेंगे, दीज आर वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चंस होती है। Distance and time. हाँ काइंड ऑफ, I Yeah. still remember this one question in my head sir, और दीदी पेन पेपर से कर रही थी, एंड आई रिमेम्बर मैंने शायद बिकॉज मेरी मैथ मेंटली बहुत, You तो you 5 6 सेकंड्स में हाँ. गॉट द आंसर, और मैं बोल दिया और उसने किया और उसका तब आया, तो शी वाज लाइक कि भाई तेरी इतनी अच्छी है तो तू कहाँ ये इंजीनियरिंग में पागल बन रहा है, बट तक तो आ ही चुके थे, नो स्टेप टेकिंग बैक। Okay. So this was when you still had 3 years to go in engineering. यस सर यस। Okay, okay. So was it only for CAT as the exam, or you seriously started thinking about the management career in corporate?
समटाइम्स यू जस्ट कॉट अप विद एग्जाम पार्ट. जैसे बिल्कुल जेई में बच्चा ना एग्जाम के लिए फंसा हुआ है कि मेरे को जेई निकालना, ही डजंट नो व्हाट इज आफ्टर जेई. So, were you clear what is there after CAT, or it was just CAT? That's it. एब्सोल्युटली, मतलब ग्रेट क्वेश्चन सर, क्योंकि मैंने इस बारे में खुद भी बाद में सोचा है. इनिशियली सर इट वाज एक्चुअली, आई विल बी ऑनेस्ट, इट वाज जस्ट कैट कैट कैट. क्यों कैट क्यों? ताकि मुझे मुझे ये था कि भैया मुझे इंजीनियरिंग तो देखो समझ में आ नहीं रही, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, हाउ विल आई डू इट? कैट विल हेल्प मी गेट रिड ऑफ. I used to think of very common thinking among first year, second year के बच्चों में होता है. But then but मैंने prepare of course third year में start किया थोड़ा थोड़ा. तो second year में जब मैं CAT के लिए कर रहा था तो my sister used to keep telling me कि मतलब I'm lucky, I'm blessed with a very helpful sister. उसने ये सब सोचवाया कि भाई, and the question you said, she made me think about it कि क्या तुम मैनेजमेंट करना चाहते हो, क्या तुम कॉर्पोरेट लाइफ में देखते हो खुद को. Then I again researched about it, थोड़ा बहुत सीन जो एमबीए वगैरह हमारे कॉलेज से कर रहे थे उनसे थोड़ी बात की थी मैंने. आई रिमेम्बर आई टॉक टू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, सिस्टर्स फ्रेंड्स एज वेल, एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देन आई अंडरस्टूड, एंड जब समझ में आया तो ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड ऑफ कि हाँ कैट की एकदम भूख है कि भाई कैट ही करना है, कैट ही करना है. बट हाँ, once I read about it, even before my preparation had actually begun, I knew कि नहीं यार मेरे को यही लाइफ करनी है. मुझे मार्केटिंग में बहुत, अगेन वो होता है तब बहुत चीजें अच्छी लग रही होती है उस स्टेज में कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है. देन यू टॉक यू स्टार्ट सीइंग, तो मुझे मार्केटिंग बहुत अच्छी लगने लगी थी. आई थॉट कि नहीं यार इसमें करियर बनाया जा सकता है. तो दैट इज हाउ आई थॉट कि बिफोर द प्रिपरेशन टू आंसर क्वेश्चन सर, थैंकफुली आई हैड गॉटन एन आइडिया कि नहीं यार मुझे कॉर्पोरेट मैथ ये मतलब एमबीए ही करना है, not just CAT का एग्जाम देना है. But I started off with just CAT का एग्जाम to get rid of my engineering. Okay, so at first it was just escape, and then it actually became the goal. All right. How easy or tough was the preparation for you? Somebody who is already good with numbers, has studied in a decent school, language is all right, understanding the comprehension is not, the reading comprehension part is not that difficult. Again, how was it? Was it in some terms simple for you, or you also struggled with the prep part? Sir, I थोड़ा तो of course थोड़ा तो नहीं, काफी I struggled because कॉलेज था तब तो टाइम इतना मिलता नहीं था. हाँ, that would be one factor. प्रॉब्लम होता है कि ठीक है. एंड तो फिर मतलब I will not advise others to do, but thankfully again as I said कि it's not a great college, तो अटेंडेंस का थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था. तो कई बार ऐसा होता था सर कि एम कैट्स होते थे कि संडे को एंड मंडे ट्यूसडे रिजल्ट आता था एंड 92 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल आ रही है, which is मतलब मुझे लगता था कि अगर अभी मेरी इतनी आ रही है तो बाद में तो ऑफ कोर्स विद मोर पीपल कमिंग इनटू द एक्चुअल एग्जाम आई शिफ्ट डाउन टू 85. those things used to actually hurt a lot. तो अगर it was again I'll stick to the question. थोड़ा टफ तो काफी था सर, बट वन थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने इवेंचुअली टाइम का, दिस नो सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क. आई एम मतलब people find it very cool to say कि smart work and not hard work. I'm very, maybe you can call me a donkey in that sense. I'm very about hard work. भाई मेरे से तुम 10 मतलब मैं करता रहूंगा जब तक मुझे नहीं आएगा मैं करता रहूंगा. Maybe I'm stubborn, maybe people think it's not smart work, which is not cool in today's age, but that is what I am. मेरे को हाँ तो टफ तो होता था सर, काफी टफ होता था, but I would get through it. I truly believe that there's no, I mean, all this talk about seeing a channel on YouTube and saying कि 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करें and बिना पढ़े कैसे निकाल दें. I mean, I'm still not able to comprehend that part कि नहीं हो सकता है. You have to put in the hours. मेहनत तो करना ही पड़ेगा. 30 सेकंड्स वाला भी ना सर वो आप तब कर पाते हो जब आपने उसके लिए 15-20 दिन दिए होते हैं. अब इतना अच्छे आप हो जाते हो कि आप एकदम से 3 सेकंड में कर लेते हो. Exactly. प्रॉब्लम इज कि people don't want to put in those 15-20 days. I mean, that is what somebody wrote about Usain Bolt, that okay कि 9 ही सेकंड तो दौड़ा, इतना पैसा क्यों मिला? तो he put in the miles. He put in the miles, fine. वो तो देखो उसने क्या किया है. That's the point. Okay. So from where do you get that stamina of keep hitting at the problem? Because some of us may not be may not be the people who can just focus for a long time, or maybe just have the willpower to sort out a problem. I mean, can we work something for it, or it's just natural, either you have it or you don't have it? No. I think I felt कि life में मतलब almost probably मेरे को जैसे कभी जिंदगी में आर्ट नहीं आई, तो that is something I think कि I didn't have it and I could never achieve it. But उसके अलावा सब mostly चीजें I feel even if you don't have it, if you work hard enough towards it for consistently, I think consistently सबसे बड़ा पार्ट है. जैसे
अगेन मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सर, बट उस पे ही आता हूँ वापस। पिछला क्वेश्चन था, मैं ना रोज प्रिपेयर जरूर करता था, भले ही मैं 1 घंटे करता था। ओके, देयर वर अच्छा। डेज में जब चार ओके। क्वेश्चन किए बस, बट सर मैं चार मतलब एक ही घंटा मिल रहा है मुझे, कोई बात, बट मैं 4 क्वेश्चन किए, लेकिन मैंने किए। एक भी दिन ऐसा शायद नहीं गया होगा मेरा जब मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके। इट इट बिल्ड्स अप, इट एड्स अप, इट एज यू वर बिल्ड्स अप। टॉकिंग। तो कि आप अभी यूसैन बोल्ट का सर एग्जाम्पल देते हो, उसकी भी जब तबीयत भी खराब होती थी, इवन आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, तो कि भाई मैं फिर भी मतलब जिम तो अपना जाता ही था, मतलब आई वुड नॉट लेट दैट गो। यू कैन नॉट, अगेन हार्ड वर्क हो गया भाई, वी केम बैक टू इट। कमिंग बैक टू द पॉइंट की इनकलकेट करने का, यू हैव टू थिंक अबाउट द बिगर गोल। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आई कांट कमेंट ऑन अदर्स। कि जैसे मेरे को था कि यार मैं इंजीनियरिंग में हूँ, आई डोंट राइट फील्ड, एंड आई कैन सी आई वोंट बी एबल, आई डोंट रियली वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ व्हाट आई हैव चोजन, ठीक है। तो ठीक है, मतलब यू हैव टू क्लियर योर हेड टुवर्ड्स इट, यू विल कि हाँ ठीक है ये नहीं करना है, तो करना है, यू कैन नॉट सिट आइडल एट होम, राइट। क्या करना है, कैट करना है। कैट के लिए क्या है कि भैया प्रिपरेशन, तो ये क्लैरिटी तो आपको लानी ही पड़ेगी। ओके। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी था कि अरे हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं तो कैट नहीं तो क्या हुआ, 30-40 हजार की जॉब लग जाएगी, कॉलेज के बाद वो कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था, बट फिर वही था कि नहीं, यू हैव टू थिंक, ब्रेक इट डाउन, प्रॉब्ली दैट्स वन वे ऑफ getting to it कि जैसे stamina, of course everyone loses stamina, you get tired, and it's a marathon, nothing is a 100-meter race when it comes to your career, right? But you do break it down. तो मेरे लिए I think aim cats were the way I was breaking it down कि हाँ यार आगे इस बार 92% आई लाइक, कोई मतलब थोड़ी देर बुरा लगता था, पर ठीक है अब क्या, अगली बार 93 मारना है भाई, कैसे मारेंगे, पहले इसमें सारी कमियां निकालो, बैठ के निकालो कि हाँ कौन सी क्वेश्चन गलत है। एंड आई एम सिकलर पर एकदम पागल हूं मैं कि जो सही भी होते थे होता था कि क्या मैंने वो भी क्वेश्चन चेक कर रहा निकालना है। है। यस। हाँ, मैं बहुत ही, पता नहीं, लोग कहते थे कि भाई तू कितना वेल रहा है, बट आई लाइक सर, क्योंकि ना आंसर लाना इज नॉट अ बिग थिंग इन प्रॉब्ली कैट। तो एग्जैक्टली। कैट में तो आंसर बड़ा आसान कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ऑप्शन है यार, अगर 4 बार कुछ मारेगा तो तो होगा। हाँ। एक तो ठीक हाँ, होगा ही ना, वो तो एक तो है। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एग्जैक्टली। वो कोई बड़ी बात नहीं। बट क्या एग्जाम की दिन विल इट ट्रांसलेट टू दैट? इट डजंट। मतलब इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिग, लाइक आई वाज एमिंग कि हाँ अच्छा हो, एटलीस्ट 99 तो आए, 99.99 थैंकफुली आ गया, नेवर एक्सपेक्टेड, बट एटलीस्ट 99 वाज माय टारगेट सर, आई बी ऑनेस्ट। तो उसके लिए कैसे है कि हाँ भाई एटलीस्ट तुझे 70, मतलब एटलीस्ट 200 आने चाहिए, 300 में से 300 के लिए 67 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आई कैन नॉट लिव विद अ 1 in 4 प्रोबेबिलिटी, राइट। आई हैव टू गेट इट कि नहीं नहीं मेरे ये भी सही, ये भी सही। तो हाँ, यू ब्रेक इट डाउन, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, ब्रेक इट डाउन इन स्टेप्स, and then probably you would hopefully not run out of stamina. Because that is something that that is not very common, to keep hitting at and all the people that I have met or I have spoken to who have been reasonably successful in their cats, they all have shared the same experience that we could sit down for hours, and even if you were solving one problem, we could go after it like crazy कि होगा कैसे नहीं. That was one common feature. So again, coming from you, that simply proves that okay, that is the only way out. That is probably the Yes, only way. The yes, first thing is get the clarity that okay, you want to do something. The reasons might vary. You may be running away from engineering, or you may be chasing some other goal, but the clarity should be there. That finally, I'm aiming for this particular thing. Okay. अच्छा ऋषभ, अब जैसे ये सब हो रहा है and now we are talking and सब अच्छा लग रहा है, ये किया वो किया, इतना कॉलेज में मस्ती मारी या फिर उसके बाद पढ़ाई ऐसे किया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि उस टाइम पे भी देयर वुड बी सम इंटरनल टर्मोइल, बिकॉज कैट वाज स्टिल अ ईयर और टू अवे. yes, yes, sir. तो मतलब अगेन another thing I'll never suggest others to do is कि somehow मेरे दिमाग में ये आ गया था, पता नहीं मैंने कुछ मोटिवेशनल बुक ज्यादा पढ़ ली थी अच्छा. या हाँ। I'll be honest sir कि तो लोगों ने कहा था कि the moment you have a plan B you don't really believe in your plan A, और मैं इस चीज में घुस गया था। burn your bridges or something like that. एग्जैक्टली, एंड दैट इज सो, मतलब अगेन आई गॉट लकी कि मेरा हो गया, बट दैट इज नॉट द वे यू शुड बी डूइंग इन योर एटलीस्ट करियर को। ऐसा मत मजाक मत बनाओ कि नहीं नहीं बर्न योर, तो मैंने मतलब देयर वाज थिंग कि सबको बताते जाओ कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, दैट पुट्स इंटरनल प्रेशर ऑन यू। और आई डिड दिस, एंड अगेन एज यू सेड अबाउट टर्मोइल सर, बहुत ज्यादा इससे प्रेशर बढ़ जाता है, व्हिच इज ओके. आई विल सजेस्ट नोबडी एल्स टू डू। हाँ, एंड पॉइंट ये था कि मैंने somehow सोच लिया था कि प्लान बी, मेरा प्लान बी क्या होता है, प्लान होता है मेरा ये कैट, एंड प्लान बी होता है कि मैं जॉब कर लूंगा नॉर्मल सा, ओके. कॉलेज तो हो जाता, क्योंकि मेरा मार्क्स ठीक थे, तो लाइक एनी अदर इंजीनियर
इंटरव्यू क्रैक करके जॉब तो लग इंटरव्यू जाता क्रैक हो है। जाता है, यस। हाँ, इंटरव्यू क्रैक करके जॉब तो ले ही लेते हैं। और somehow मेरे दिमाग में आ गया था कि नहीं, तो जब मेरे प्लेसमेंट्स थे सर इन फोर्थ ईयर, मैं प्लेसमेंट्स में बैठा ही नहीं था। ओके। आई डोंट नो मेरे को तब क्या हुआ था। मे बी थोड़ा ये होने लगा था कि सर रिजल्ट भी अच्छे हो गए थे, तो आई बिलीव इन माई सेल्फ कि यार देख अच्छा खासा हो जाएगा। इट वाज वेरी 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 रिस्की एंड आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू इट, क्योंकि व्हाट इफ आई हैड नॉट डन इट, क्योंकि फिर बाद में आई थॉट कि शायद मैं जॉब नहीं कर पाता, एंड जॉब में चला जाता तो शायद मेरा फिर कैट प्रेप के लिए इतना मेहनत भी नहीं रह जाता, इतनी मैं कर भी नहीं पाता। एंड सर कॉलेज से भी दिक्कत होती थी कि भाई मतलब जब ऑफ कोर्स मैं डूइंग कैट, आई वाज नॉट रियली फोकसिंग ऑन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, आई वाज नॉट रियली फोकसिंग ऑन स्टडीज इन कॉलेज अ लॉट। अटेंडेंस भी कम होती थी, तो द टर्मोइल वाज देयर। तो फिर घर वाले पूछते थे कि अरे इस सेमेस्टर में तुम्हारे इतने कमाए कर क्या रहे हो बेटा। इज अगेन आई थिंक हम सब के लिए वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि घर वालों को क्या जवाब देंगे कि कैट में भी तुम 92 93 और 94 यहाँ भी नहीं परसेंट आ कर रहे रहा। हो और ये भी नहीं कर रहे हो, तो तुम तो मतलब बिल्कुल ही भंवर में फंस गए हो बेटा ना। नीदर कैन यू गो हियर नॉट देयर, तो यू आर, तो दैट बहुत वो था मतलब, देयर वर मोमेंट्स, बट थैंकफुली वही था कि आई आई केप्ट एट इट। आई न्यू कि मेरा प्रोसेस ठीक, मतलब मे बी दैट्स वन थिंग कि शायद कैट ट्वेल्थ में फेल होना, मतलब ट्वेल्थ में जेई में नहीं जाना was a boon for someone like me at least, because I knew कि what I don't have to do. I don't have to do answers. I don't have to be a lazy wo. I have to work hard and I have to keep at it लगातार लगातार लगातार। तो मेरे को पता था कि हाँ मैं इतनी रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ, इट विल पे ऑफ। थर्ड ईयर के Okay. So, एंड so, के एम कैच में इट स्टार्टेड डूइंग गुड। okay. So that may be the gestation period where you're working hard, but results may not be visible as apparent as people would expect. But internally confidence था कि ठीक है, अब मतलब सही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट कर जाएगा. All right. So, but not picking a job on campus, because getting job out of campus is nearly impossible. सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मेरी फील्ड भी ऐसी थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, हाँ. बहुत ज्यादा कंपनीज उसकी है नहीं दुनिया में, ठीक है ना। तो आई वोंट हैव हैड अ लॉट ऑफ चॉइसेस। Okay. Then how many attempts of CAT? सर फर्स्ट आई जस्ट गिव वन First, थिंग एंड just one. थैंकफुली Okay. So one attempt, 99.99, and life changes overnight. एब्सोल्युटली सर, आई कैन नॉट टेल यू मतलब रिजल्ट जब आया था, आई अंडरस्टैंड सब मैसेज आने शुरू हुए थे शायद, मेरे दैट वाज द कैसे व्हेन दे सेंड द मैसेजेस. तो क्या व्हाट वर यू अप टू व्हेन यू गॉट द रिजल्ट, और आई समरी? रिमेम्बर दिस सो विविडली, एंड मतलब इसके बाद का भी आई टेल यू वन रिएक्शन। मैं अ फ्यू गुड मैन आ रही थी एक्चुअली में टीवी पे, टॉम आई क्रूज, रियली लव या. दैट। आई लव दैट मूवी, इट्स I I अमेजिंग। uh, I named my interview panel A Few Good Men. ओह वाओ, अमेजिंग सर, अमेजिंग। एंड मतलब वो मूवी जो है ना, मतलब मैं कितनी भी बार देख लूं Oh, वो जो है। awesome. Yeah. हाँ, तो आई वाज वाचिंग दैट मूवी एंड मतलब ऑफ कोर्स वैसे ग्रुप में चैट होने लगा था कि आज रिजल्ट आएगा। आपको पता ही होगा कि वो रोज ही बच्चे करते थे कि आज रोज, रिजल्ट एवरी डे, आएगा। हाँ, आज आने वाला है. IIM अहमदाबाद ने कहा है आज, जैसे पर्सनली आज है, कहा हुआ के. हाँ, और इतने कॉन्फिडेंस से लोग क्लेम करते हैं सर, इतने कॉन्फिडेंस से कि मतलब भाई यही सीधे बात कर रहे थे वही top। सीधे बात कर रहे. हाँ, बट फिर मेरी एक बंदे से बात होती थी, वो टीसीएस में काम करता, उसका भाई टीसीएस में काम करता था, तो वो लोग कुछ रिजल्ट इधर अपलोड कर रहे थे इनकी कैट वेबसाइट पे, तो उसने कहा था कि आ जाएगा। तो आई वाज थोड़ा नर्वस सुबह से, बट आई हैड नॉट टोल्ड एनीवन एट होम, क्योंकि वही होता है ना, वो पहले लग रहा था एग्जाम देके आया था कि 99 मार लेंगे, बट इतना एक महीने का जो वेट होता है ना सर, उसमें फिर हाँ, कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। कम होता रहता है. Because ये अरे शिट यार, अरे यार ये भी तो गलत था, अरे वो भी तो गलत था, अरे वो या अरे गए या 90। या एवरी सिंगल डे एक एक क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाता बस है. सीरियसली एग्जैक्टली यही हुआ था। रोज एक क्वेश्चन गलत हो रहा था मेरे मन में, और गए 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 90 है, जॉब ली नहीं है, अब तो बेटा जाके भूख लगेगी तुम्हारी। बट समहाउ मैसेज आया एंड मतलब मैं मतलब चिल हूँ कि 5-6 मिनट बाद देखा है, और ग्रुप पे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने तो उस शिट में देखा, तो आई कुडंट बिलीव, तो मैंने देखा एंड आई कुड नॉट बिलीव इट, आई स्वेयर आई कुड नॉट बिलीव इट कि मेरे जैसे के इतने। तो मैंने बंद किया एक्सेलरेटर, फिर मैंने दोबारा मैसेजेस खोले, फिर इनबॉक्स में जाके फिर देखा, वही आ मतलब रहा नहीं है. यार यही है, ठीक है। तो मतलब ओ गॉड दैट मोमेंट, एंड बट मैं पता है थैंकफुली बस पता था कि हो जाएगा, बीच में नर्वसनेस आई, बट ठीक है इतनी मेहनत की थी तो खुशियां काबू में थी थोड़ी। बट फिर मेरी मम्मी बाहर सब्जी काट रही थी, मुझे अभी तक याद है, तो मैं बाहर गया, मम्मी पास, मम्मी रिजल्ट आ गया। ये अच्छा बेटा कितना आया? मैं कहा 99.99। एंड आई स्वेयर आई किड यू नॉट, मेरी माँ के हाथ में थाली थी और वो ऐसे चिल्लाई और उनके हाथ से थाली गिर गई, और वो इतनी खुश हुई ना कि मतलब आई कैन नॉट टेल यू।
And I think that was the moment. मतलब that was उस एक moment के लिए every single moment thing was worth it. कि चलो coming from a lady who was seen crying in her school in school when the kid was in class 8, exactly. and that thali going out of control with 99.99. I'll never forget that moment. हमारी lobby में मम्मी के और वैसे चिल्लाई और ऐसे बेचारी कूदने लगी. मतलब I cannot tell you वो एक moment में मतलब I think मेरी life summarize हो गई. And everything जो आपने बोला ना it all flashed in front of my eyes कि यार अपन कितने बेकार थे, फिर ये हुआ, but फिर ठीक है. फिर हाँ पापा and my father's reaction was the best. He was in a meeting somewhere और मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया. अच्छा मैंने कहा पापा 99.9. बोले अच्छा चलो ठीक है. Oh, he couldn't react there. He couldn't react. ये क्या हुआ? आप तो खुश हो लो. अच्छा, घर वाले एकदम एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं. हे भगवान, I cannot भाई क्या चल क्या रहा है मेरे परिवार. Everyone was going एकदम crazy कि ये क्या है क्या. And हाँ, but just to come on to this, मेरे शायद एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि I've always been very close to my sister and उसका सपना था कि I should get a good percentile and I should probably get into at least an ABC because she thought कि I'm good enough. तो थोड़ा ये भी टाइम हो गया था कि as much as it was a dream of myself, again middle class लोग हैं सर वैसे ही सोचा है, but it became a dream. हाँ, but for it everybody. became दीदी का ड्रीम पूरा करना होगा कि भाई मेरा तो इतना 90 उसका 94 या 95 परसेंटाइल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मेरे भाई का होगा ऐसे में. तो वही होता है अपने अपना अपने की खुशी बहुत कम हो जाती है, बट इनके सपने पूरे कर दिए, ये लोग खुश हो गए, चलो भाई. So here you are with 99.99, media knocking at your doorstep. Oh yes. Like city topper. Then suddenly in a day or 2 or 3 you would have realized यार अभी तो इंटरव्यू बाकी है. हर स्टेज पे लोग ऐसे बोलते थे कि अरे अभी तक तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, अगला वाला तो बहुत ज्यादा टफ है. मतलब people won't let you be happy for long. That's a very one big problem. They just would not stop. वो अरे अब तो इंटरव्यूज है, अरे अभी तो जीडी है, तूने तो जॉब इंटरव्यूज में भी नहीं बैठा ना, तो तेरे तो जीडी भी अच्छा नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो हाउ विल यू क्रैक जीडी. ऑल्दो सिर्फ कोड में जीडी रह गया था तब तक, और जीडी. बट हाँ भाई डरा कि खुशी नहीं होने देते थे लोग. So you come back to the next stage where eventually you started preparing together. And that is where we started talking a lot. Yes, sir. In those days. Fortunately, it was all offline. We used to sit there all day chatting. Actually, I mean, and even now, every single year, even though I'm not into any institute per se who coach for CAT, but still every year I get some students for interview preparations, and every single year I decide कि बस ये आखिरी साल है, अब नहीं करेंगे. It makes me so anxious. It makes me so anxious. वो बच्चा सामने बैठा है, वो आपसे बेटर है, आपसे ज्यादा उसका IQ है, वो नंबर लेके बैठा है, and he or she has all the hopes on you कि सर कुछ ऐसा जादू बता दो. कॉन्फिडेंस आ जाए और मैं इंटरव्यू. और मेरे पास कोई जादू है नहीं, unfortunately. I mean, there's no magic to it, right? What do you say to this kid? So every single year I realize कि बस यार ये आखिरी बार है, अब नहीं करेंगे. And next year again some random kid calls up कि सर आपका नंबर यहाँ से मिला, उन्होंने बताया था, and you're again like अरे यार अब कैसे छोड़ दें इसको, कैसे छोड़ दें. नंबर लाके बैठा हुआ है. बहुत very मतलब एक अजीब से दिन होते हैं वो. You are some days you are happy, some days you are suddenly totally down in the gutter, depressed कि यार अब नहीं होना लगता इस साल. Too many ups and downs for nearly 2 months or 2.5 months, I suppose. Exactly. मतलब पॉइंट वही है ना सर, एज आई वाज सेइंग कि लोग ना बहुत डरा देते हैं. हाँ, रिव्यू है, इसमें ये लोग बैठेंगे, तुम्हें ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ठीक है, मतलब ठीक है. You respect that, the people in front, but I think even back then when we would have talked, I think the focus would have been that be yourself, be sincere, be honest, and that's it. Exactly, sir. And पता है क्या, one thing I've realized, मतलब अब चलो 6 साल हो गए इस चीज को, I've sat in many interviews, मतलब college interviews and everything. Just one thing I'll suggest to anyone listening to this, people are sitting there to select you, not to reject you. Exactly. Always remember this one thing. They will reject, मतलब they want to take you because imagine being in their shoes. They are also investing their time, right? They would prefer to just हम सोचने लगते हैं कि मैं जाऊंगा. एंड हाँ दूसरी बात, आप कितना प्रिपेयर कर लो,
आपका 100% परफेक्ट चांस ही नहीं, चांस ही और नहीं, अगर जाता है तो आपको सत नमन, मेरा तो आज तक लाइफ में कोई नहीं गया है, बहुत ही नहीं होना ऑनेस्टली है, मैं बोल सकता हूँ नहीं सर। होना है। और नहीं हाँ, तो मतलब अगेन डोंट बीट योरसेल्फ अबाउट इट कि यार हम्म, यार हर चीज आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। प्रिपेयर योर बेस्ट एंड वो तुम्हें लेना चाहता है, ट्रस्ट मी, हम्म, एवरी इंटरव्यूअर हम्म, नो एंड नो हाँ, इंटरव्यूअर हेट्स यू ऑलरेडी। नॉट पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग बाद में कि अरे नहीं यार मैं तो एग्जैक्टली, चल कैसे गया था, मैं बिना पूछे बैठ गया तो वहीं से उसका मेरे से मुंह चढ़ गया था। नथिंग, नथिंग, दे आर नॉट, दे डोंट they इवन are, केयर they are अबाउट least bothered to that level. They're एग्जैक्टली। least bothered with that. यार वो इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, इतने महान Exactly. गजब गजब प्रॉप्स हैं, हाँ, वो डू यू रियली थिंक उनकी लाइफ में ये चीज बची कि अरे ये लड़का आके बैठ गया, अब इसको नहीं लूंगा मैं, वो हाँ, खड़ा रहा था तो उसको ले लूंगा। they पीपल are डोंट। there for a reason, and they are very clear about that reason. एग्जैक्टली सर। And I mean, बच्चे आते हैं बोलते हैं सर ये मैं बताऊंगा तो वैसे पूछ लेंगे फिर क्या, हाँ अरे तो they are there to have a conversation, right? हाँ, तो छुपाने का क्या है? बिल्कुल नहीं। एंड वो पता है सर, वो ना वही पूछ रहे थे तो उन्हें, एंड दे आल्सो रियलाइज कि तुम ना अभी मतलब मैं आई वाज अ फ्रेशर तो आई थॉट हाँ, तुम you were फ्रेशर just कौन out से। of college in fact, yeah. यस सर, तो दे अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड मतलब मैं भी देखता हूँ 6 साल पहले मैं काफी मतलब अभी से अब काफी कम मुझ में बुद्धि थी, तो इवन दे अंडरस्टैंड बिकॉज वो हर साल इस टाइप के बच्चे देख रहे हैं, तो they, डोंट they, थिंक कि they वो meet अब them. भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें हाँ, भी पता है काफी थोड़ा डरा हुआ बच्चा आएगा, थोड़ा हाँ, कम प्रिपेयर्ड बच्चा आएगा, इसको शायद हर चीज दुनिया की नहीं मालूम होगी, नहीं पता उन्हें होगा। भी ये चीज पता होगा। Yes, डोंट yes. थिंक दे आर लुकिंग फॉर हाँ, व्हाट्स। हाँ। ये चीज प्लीज याद रखिए एवरीवन। बिकॉज अभी क्या हुआ ना ऋषभ, ओवर लास्ट 2-3 years, when this when kids started having access to information, I mean, they could call you up and कि वो मेरा कॉल आया आपका अहमदाबाद में हुआ था, कैसे क्या करना है. And unfortunately what happens that people who are on the other side, people who have sailed through, they have completed their MBA and they are working, or sometimes what happens, these people forget what they were when they were preparing. तो वो बोलते हैं अरे वहां पे ना इसके सामने तो सब बोल मत देना, वहां पे तो कर मत देना. एंड देन these kids come back to me and say कि सर मतलब हालत खराब है. So I actually wrote a very I wrote a request on Facebook to all the seniors who were already through कि प्लीज भाई उनको ये मत बताओ कि अभी आप क्या हो गए, अभी तो आप रॉकस्टार हो गए हैं, एक्सेप्टेड है, बट प्लीज ऑल्सो टेल देम कि जब आप मॉक दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपकी भी शूशू निकल रही थी यार. यू बिल्कुल। प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. देख हमारा मेरा मॉक लिया था आप लोगों ने, मुझे अगेन अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को आप लोगों ने कहा था कि सूट पहन के आना, मिलते का मौका या सर। दैट एक्ट ऑफ इटसेल्फ ना, मतलब अभी लगता है कि आप फालतू की बात करें, शायद कई लोगों को फालतू लगे, सूट पहन के आना, सूट पहन के आना. दैट इन इटसेल्फ वाज अ थिंग कि अरे भाई मैं लाइफ में पहली बार मतलब कभी सूट नहीं पहना था भाई, कभी भी व्हाई नहीं वुड था। यू, या व्हाई वुड आई हैव वर्न इट? पहली बार लाइफ में सूट पहन के जा रहा हूं and मुझे वही इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं उसी में ही पसीना पसीना हो रहा था कि हे भगवान मुझे people looking at you like this. ये भाई लखनऊ में दोपहर में कहाँ, मार्च में गर्मी में सूट पहन के घूम रहा है लड़का बाइक पे है। And सच में वहां आके बैठ गए हैं और एकदम मतलब नर्वस हो रहे हो, होता है कोई, मतलब वही पॉइंट है, तब मुझे लगता था यार मैं कितना आई एम सो वीक, मतलब आई वुड बीट माई सेल्फ अप ऑनेस्टली एंड विच इज रॉन्ग Which कि is wrong, yeah. मैं नर्वस हूँ, मैं पसीना पसीना क्यों रहा हूँ, इंटरव्यू भी I think it's अगर मेरा, perfectly okay. हाँ इट्स हाँ, ऑल राइट, इट्स it's all ऑल right. राइट। अगेन सबको पता है कि तुम नर्वस हो, डोंट ट्राई एंड प्रिटेंड कि नहीं हो, अगर नहीं हो हाँ, तो फिर प्रॉब्लम है, क्या हुआ नॉट नर्वस, हाँ, इट्स maybe you परफेक्टली don't ऑल care. राइट। हाँ, maybe you don't care then. एंड दैट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, वो भी फिर गलत है। डोंट गो लाइक दैट कि अरे भाई मतलब अरे मैं तो एकदम जेम्स बॉन्ड हूँ, मुझे तो कोई डर हाँ, नहीं, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा डर लग रहा है, सबके हम्म. पसीने, मेरे भी, मैं भी इंटरव्यू में बैठा हूँ, हाँ हाँ ये नैपकिन निकाल के सब सब हो रहा है, सब हो रहा यार सबका होता है। है, मुझे सबका. मेरे पहले इंटरव्यू में आप लोगों ने मुझे काफी ठीक ठाक मे बी जान के किया था, नहीं मेरे बहुत ही बुरा इंटरव्यू किया था जो हमारा पहला पहला नहीं, मॉक वो इंटरव्यू। एक्चुअली इट्स ऑलवेज अ प्लान. प्लान इसलिए होता है बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द पास्ट experiences, not with you, fortunately not with you, we experienced that kids who used to score like 98 99 ना, तो सडनली उनका चाल ढाल चेंज होता था, एंड मे बी दे वुडंट जस्ट, मतलब शायद मुझे तो एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, वह छोड़ अंग्रेजी है, दैट छोड़ना है, मुझसे बहुत भाई. हाँ, so the entire idea was to bring these kids down to earth, let them realize कि बेटा देखो अच्छी बात है, you got the percentile and you are a very brilliant kid, but then still there's a long way to go. So some kids accepted that and they realized it कि यार गलती हो गया. हाँ, हाँ. In your case, we did what we had to, but
फॉर्चुनेटली प्रॉब्लम वो था ही नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं था. वी अंडरस्टूड कि नहीं यार ये बच्चा अभी ही स्टिल सेन, ही इज ओके. देन वी स्टार्टेड द अदर थिंग्स कि भाई ये हटाओ, वो जोड़ो, ये करो, वो करो. आई बट द रिमेम्बर प्लान आपके इज साथ ऑलवेज मैंने देयर. आंसर सारे डिस्कस किए थे, मतलब कुछ दिन पहले भी आई थिंक मैं अपना ईमेल देख रहा था, तो मैंने आपको मेल्स भेज रखे हैं, फिर आपने रिप्लाई किया है, मैंने आंसर्स लिख के भेजे. आई वाज गोइंग थ्रू दैट. इज एक दिन पता है वैसे मुझे याद आ रही थी ये चीजें, तो आई रेड माय आंसर्स एंड आई थॉट कि मतलब कि ओ ये सब भी किया था. ये सब क्या भी किया. हाँ, क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए थे, शायद 10 क्वेश्चंस दिए थे, हाँ, 10 15. क्वेश्चंस होते थे. हाँ भाई, वो सारों पे आंसर्स लिख के, आंसर्स भी एडिट करे हुए थे. And तो फिर वही मतलब हाँ, प्रेप तो मतलब चाहिए, मतलब होता है. again it was a process for and for me preparing for an interview, especially for these great institutes, it's always an internal journey. मैं हमेशा बोलता था कि बेटा देखो, अगर तुमने कायदे से इस बार तैयारी कर लिया इंटरव्यू का, तो लाइफ में इंटरव्यू की प्रॉब्लम तो नहीं होनी है. बिल्कुल यू कैन बिल्कुल. सिंपली वॉक इन एंड क्रैक एनी डैम इंटरव्यू. हाँ. सीरियसली. हाँ. वो. एंड एक और सजेशन है कि पीपल ना, अक्सर क्या होता है कि लोग ना, मतलब अगेन मेरा पर्सनल हाँ. एक्सपीरियंस हाँ. है कि पीपल थिंक कि यार मैं ना सीरियस होके दिखाऊंगा ना, तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा. मतलब सब कहेंगे अरे वाह कितना सीरियस बच्चा है, सिंसियर मतलब. एकदम टाइट हो, टॉप बटन लगा हो. टॉप बटन. तो मतलब मैं मतलब अगेन नॉट टू शो, मैं किसी इंटरव्यू में अपना टॉप बटन नहीं लगाया, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स मी अनकंफर्टेबल. यस, आई इट मतलब इज. आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, तो मैं कभी या. भी टॉप बटन कभी ना, कभी भी नहीं लगाता हूँ मीटिंग्स में हैव विद एनीवन. हम्म. एंड टाई भी मेरा थोड़ा लूज ही रहता, तो आई नेवर डिड दैट एकदम का. हम्म. पहली चीज. एंड सेकेंडली सर, अभी भी आपसे मैं हंसते हुए बात कर रहा हूँ. लकीली मतलब मैं हमेशा मैंने उस अपने सारे कैट के यस. इंटरव्यूज में एक ना एक जोक मारा है, जिसमें आइदर मैं हंसा हूँ या वो हंसे हैं. ठीक है. एंड बिकॉज दैट्स माई पर्सनैलिटी, सो यस. द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इज कि डोंट गेट योर पर्सनैलिटी. एक्स्ट्रा सीरियस दिखोगे ना, तो ट्रस्ट मी यू विल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपसे कहीं और हो जाएगा. और वो तो बर्डन है आपके ऊपर, वो बर्डन हो जाता है. ऑलरेडी बहुत बर्डन है भाई इंटरव्यू पे, हाँ. ठीक है ना. यस. तो यस. ट्राई एंड रिड्यूस दोस बर्डन्स एंड बी योर नेचुरल सेल्फ यार. ठीक है, I वो I हंसो. I fully agree with you because अभी भी क्या होता है ना, that the profession that I am in, uh, we are expected to dress up formally, शर्ट पैंट टक करके, लेदर जूता पहन के मास्टर जी आएंगे, शर्ट यहाँ तक वो रहेगा. So even now when fortunately I'm at a stage where people have started approaching me instead of the other way around when I had to go out and approach them. तो अभी भी सर लोग जब आते हैं, बात होता है किसी से, तो my only concern is कि सर कोई ड्रेस कोड तो नहीं है ना आपके यहाँ. बस. Because I'm not comfortable in that. I like throwing my hands around. I like to move with my entire body. With that shirt pant, leather, shoe and belt, I'm not myself. I'm एग्जैक्टली just सर. restricting. वही I'm तो, not जब भी myself. वही भी थोड़ी देर पहले मैं सूट वाले एग्जाम दे रहा था सर, उस दिन मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज हैपनिंग. मैं Somebody एकदम has somebody has kind of crammed you like this. एकदम कुछ दिन पहले नया सूट खरीदा था एंड एवरीथिंग, मतलब अभी सोचता हूँ तो लगता है यार एक इट वाज जस्ट वेयरिंग अ सूट, बट इवन दैट इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. That's experience. उसमें एक I don't know if it happened to you or not. Sometimes ना बच्चा नए नए लेदर शूज लेके आता था. तो टाइट होते हैं. अब ना वो टाइट हो रहा है और चू 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 करके वही तो सर. और वही तो एग्जैक्टली. तो मतलब एंड यही होता है ना, आप जब बाहर बैठे हो तो ना कि इंटरव्यू में बुलाने वाले हैं कि अरे अरे हर चीज आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे चलूंगा. Yeah. इवन दीज थिंग्स पीपल हैव थॉट, बट इवन मैंने भी कभी कि मैं चलूंगा तो चू चू करेगा, तो आपने एकदम तो मैं Correct. शायद खाली आपने आगे के टोज पे चलूंगा, पूरा पैर नहीं रखूंगा तो चू चू ना करे. मतलब द काइंड ऑफ स्टूपिड, आई यूज द वर्ड स्टूपिड, इट इज इररेलेवेंट, नोबडी केयर Irrelevant. नहीं. your जूते आवाज कर रहे हैं या नहीं. Really. चिल. It's Nobody. it's it's not in your control actually. यार अब वो जूता, I mean that probably that should be the moment to turn it around and say कि सर शायद गलती हो गया, मतलब I bought the wrong pair I guess for the day. सर मैं मतलब अभी बता रहा हूँ, IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में ना बहुत ही, ये मैं सबको एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू हाँ. पुट देयर हेड्स एट ईज, क्योंकि हाँ. लोगों को लगता है कि इंटरव्यूज एकदम गॉड लेवल परफेक्ट जाना चाहिए. आई नेम द स्टेट्स ऑफ इन इंडिया रॉन्ग. आई थिंक 29 है एंड आई स्टक टू माय गन्स एंड सेड कि 28 ही है. दे अभी गेव तो मी एन इतना ही है. हाँ. दे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी. सब सोच लो 28 है. Okay. अरे सर आप तो मुझे नर्वस करो. 20 और उन्होंने कहा नहीं सर, दिस गिव मी द आंसर, नहीं 29 है बेटा, यू आर रॉन्ग. एंड एट दैट मोमेंट आई थॉट ओ शिट, मैं इंडिया के स्टेट्स नहीं बता पा रहा हूँ तो ये मुझे क्यों लेंगे. क्यों दैट इज नहीं व्हाट है? एनीवन विल हाँ. थिंक. हाँ. बट नहीं, वो बात नहीं. दे अंडरस्टैंड कि ये छोटी मोटी गलतियां तुमसे नर्वसनेस में हो रही हैं. हम्म. एंड सेकेंडली, तुम 28 स्टेट्स या 20, ये से एग्जांपल ऑफ कोर्स सबसे कुछ और पूछेंगे. दिस विल नेवर डिसाइड वेदर यू विल बी टेकन और नॉट. Exactly. ठीक है. हाँ. इवन इफ इट GK गोज रॉन्ग, GK doesn't decide. GK doesn't decide it normally. will not. It will. हाँ. It's always sir. मैंने जो देखा है कैट के इंटरव्यूज में, it's your attitude and your behavior. Knowledge, of course knowledge Of matters. course, of ऐसा नहीं course. है कि आप एकदम हाँ. ही कि हाँ. भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस हाँ. हाँ एटीट्यूड हाँ. लेके आ हाँ. गया हूँ.
हाँ. एक्चुअली वो 3 इडियट्स के बन जाओ कि सर मैं अपना एटीट्यूड रखता हूँ, आप अपना जॉब रख लीजिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, तो अब चली जाइए. फिर आप अपना एटीट्यूड रख के बाहर ही चले जाइए। हाँ. बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट दैट कि दे विल ट्राई, कभी कभी होगा कि हाँ थोड़ा आपको वो डराएंगे, या जैसे आप थोड़ी देर एक पहले एग्जाम होगा, जस्ट हम्म. मेंटेन योर काम, आराम हम्म. से रहो, कोई बात हम्म. नहीं, हम्म. पसीना आएगा, गला सूखेगा, कोई बात चलता नहीं, है. पानी पी लो, चलता हाँ, है, चलता है, कोई बात चलता नहीं, है. एवरीवन अंडरस्टैंड। So you are already so tense. Why put additional tension on your head? कि ठीक है सामने. हाँ. And I keep telling everybody कि भाई वो जो सामने बैठे हैं, they are wonderful people. They are helpful. They will help you. हाँ, वो वहां पे वो दे आर नॉट देयर टू ह्यूमिलेट यू. वो मदद करेंगे यार, वो कि ठीक है बच्चा आया है, चलो लेट्स हैव अ डिसेंट टॉक, एंड जहां फंसेगा निकालेंगे खुद ही वो. सर, हाँ. और पता है पैशन बहुत जरूरी है। मेरा IIM बैंगलोर का इंटरव्यू था, तो देट हम्म. अगेन एज आई स्टार्टिंग में, मतलब काफी बार मैं बोल चुका, मैंने अपनी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मन लगा के पढ़ाई की नहीं है, तो दे टॉक में स्टार्ट टॉक टू मी अबाउट पेट्रोलियम, मैंने काफी आंसर दिए, बट काफी हम्म. मैं नहीं दे पाया, आई थिंक हम्म. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज से जो उस टाइम हो रही थी 5-6 महीने में, आई वाज नॉट अपडेटेड, बिकॉज मैं हम्म. पूरा उस पर आ गया था, कैट 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 एंड हम्म. बाकी दुनिया हम्म. पढ़ेंगे, पेट्रोलियम क्या पढ़ना, और हम्म. तो मतलब किस्मत दी गई सर कि कोई शेल का, रॉयल डच शेल में बंदा काम करता था, वो इंटरव्यू पैनल में था, तो वो पेट्रोलियम थे, तो उन्होंने जो ज्ञान पूछा, मुझे टेक्निकल नॉलेज आती थी, ठीक है बता दिया, हाँ. बट मैं कोई भी जनरल नॉलेज की एक भी आंसर नहीं दे पाया सर, एक भी। हम्म. हम्म. फिर 5-10 मिनट तक दे ग्रिल्ड में, आई डिडंट आंसर एनीथिंग, एंड मेरा हम्म. बैंगलोर का इंटरव्यू इसमें 50 से 55 मिनट्स चला था। अरे 1 hour. हाँ सर, क्योंकि उनको ना उस बंदे को मुझसे वो हो गई थी, तो उनको था कि तुम यार, तुम ये तो आंसर दे ले रहे हो, बट तुम्हें ये कैसे नहीं पता, मतलब तुम कर क्या रहे हो? मतलब तुम खाली इंटरव्यू प्रिपेयर करके आए हो, तुमने कॉलेज में ओके, पढ़ाई नहीं ओके, अच्छा पढ़ाई की, नहीं की है गॉट वहां इनटू पे. दैट मोड। हाँ, हाँ. एंड ऑनेस्टली, एंड मतलब बहुत धीरे मैंने थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ सर, मतलब शायद मैंने उतनी ज्यादा लास्ट 2 साल में पढ़ाई ना की हो, बिकॉज मैं थोड़ा कैट के प्रेप में लग गया था, एंड मतलब मैंने हम्म. एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज आई हम्म. कुड सी कि मैं इनको नहीं पागल बना पाऊंगा, इस बंदे को पूरी हम्म. नॉलेज, ये शेल हम्म. से ऐसे तो। हम्म. तो 30 मिनट के बाद भाई, अगेन एज आई वाज, व्हाई आई सेड अर्लियर कि दे वांट टू टेक यू, दे डोंट वांट टू रिजेक्ट यू। हम्म. तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पेट्रोलियम में, मतलब वो मेरी मजे लेने लगे कि देखो तुम्हें पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तुमने पेट्रोलियम में तो किया नहीं, अपने पापा के 15-20 लाख डुबो के आ रहे हो, मतलब दे वर ट्राइंग टू मेक। तो मैंने कहा सर जो हो गया तो हो गया, मैं आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, मैं मतलब सर अब जो हो गया तो हो गया, पापा बेचारे क्या ही करें, आई एम स्टिल जोकिंग, ठीक है। तो जैसा अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, मैंने कहा सर फुटबॉल, एंड आई एम अ ह्यूज फुटबॉल, मैं यस, यस, फुटबॉल यस. हाँ. का मैड फुटबॉल। तो मैंने हम्म. कहा अच्छा ठीक है, चलो फुटबॉल हम्म. पे बात करते हैं। सर हमने अगले 30 मिनट से 50 मिनट के गैप में सिर्फ फुटबॉल डिस्कस, सिर्फ फुटबॉल की कौन सी टीम जीती, क्यों जीती, क्या जीती, एंड सरप्राइजिंगली, और मैंने सोच लिया था कि अरे ये तो टाइम पास कर रहे हैं, अब मेरा बैंगलोर में तो नहीं है, सर आई गॉट सिलेक्टेड इन बैंगलोर, एंड देन आई लुक बैक एट इट एंड आई थिंक कि दे सॉ कि ठीक है इसको भी आती थी, इसको हम्म. थोड़ा जनरल, वही पॉइंट है, दे वांटेड टू टेक मी, यस. एंड देन बट उन्होंने देखा कि चलो एटलीस्ट फुटबॉल में इंटरेस्ट है ना, तो क्या तुझे फुटबॉल अच्छे से आती है, फुटबॉल मुझे बहुत अच्छे से आती है, एंड हम्म. मुझे प्रॉपरली आती है, ये नहीं कि मैं उसको कि हाँ मतलब मैं उसको मैनेजमेंट से भी मैं रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ हम्म. भाई ये हम्म. मैनेजर है, ये हम्म. टैक्टिक्स होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो दे कुड सी ही इज एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट, एंड देन हम्म. दे सेलेक्टेड मी। अगर किसी हम्म. को बताओ तो कहते अरे तुमने तो पढ़ाई के आंसर से नहीं दिए थे बेटा, एग्जैक्टली, फुटबॉल में एग्जैक्टली. थोड़ी ना मिलेगा, बट ले लेंगे, बिकॉज दे हैव टू सी कि तुम्हारा योर हेड इज द राइट प्लेस, हम्म. योर हम्म. एटीट्यूड इज राइट, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। And there various ways to find that out. It's not only academic. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। Like जिसको बच्चे को जहाँ मजा आ रहा है, अगर वहां पे वो टॉप नॉच बन रहा है, तो मतलब बंदा सही है फिर. एंड अभी के लिए तो ऐसे है कि ऑल द टॉप इंस्टीट्यूट्स आर, दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो एकदम, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर कि जो कॉर्पोरेट में जाएंगे, उन्हें चाहिए कि भाई लोग स्टार्टअप करें, कॉलेज चाहते हैं यस. ऐसे बच्चे हों कि स्टार्टअप ज्यादा करें, या प्रोबेबली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाएं, उन चीजों में जाएं जिसमें यूजुअली लोग जाते नहीं। तो इफ यू थिंक यू आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द कैटल वाला वो, इट्स गुड फॉर यू, एंड It's good. मेंटेन दैट, या डोंट थिंक कि नहीं नहीं मुझे भी भैया यही दिखाना है कि मेरे को 9 to 5 जॉब करना है, don't do that. Colleges will prefer you the other way around. Because the way the nation is going, I think we'll be having absolutely crazy number of startups in coming years. कि देख लो कितना गजब का फंडिंग एंड एवरीथिंग चल रहा है, Hmm. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल, तो मतलब वही है कि just stick to what you are good at, don't try and pretend, because Hmm. again they are smart people, they'll see, They will see through. Yeah. they'll Of see course, through. of course, of course. Okay, so CAT done, interview done. IIM Ahmedabad calls up, Bangalore calls up. What about C? You had a हो call गया, from? हो गया? Okay. I got in all the IIMs except Code, Okay. जिसमें मेरी बहन का हुआ था। Yeah. Maybe she had a role to play. इसको मत लेना यहाँ पे. Exactly.
मतलब बाकी सब लोग सिर्फ उसमें नहीं बना था क्या है। अभी तक मिस्ट्री है क्यों नहीं हुआ। आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं हुआ। ओके, सो फाइनली मतलब एबीसी कन्वर्ट किया भाई, और ए में जाना है, और ए हम पहुंच जाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट अहमदाबाद? देयर आर पीपल फ्रॉम all over the country, in certain cases all over the world, maybe brilliant people having terrific acads and maybe professional background, and here was a fresher who had problem wearing a suit. uh, what did you think कि यहाँ सर्वाइवल कैसे होगा, या फिर अब तो आ गए हम तो कुछ कर लेंगे? सर आई बी ऑनेस्ट, मैं ए के फर्स्ट सेमेस्टर में, ट्राइमेस्टर होता है अपना 3 सेमेस्टर 3 साल में, फर्स्ट सेम में मैंने शायद लाइफ में पहली बार सोचा था, आई नेवर क्विट। तब मैंने सोचा था कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये अपन मतलब यहाँ अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये मतलब पहली बार लगा था। जैसे इंजीनियरिंग में भी यार बस मतलब मार्क्स ले आ रहे थे, एंड अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स। आपने क्योंकि ठीक है, टेक अ स्टेप बैक, जो आपने कहा ना लोग होते हैं, बेस्ट पार्ट अबाउट इज नॉट द जॉब आई गॉट, नॉट व्हाट आई स्टडीड, काइंड ऑफ पीपल यू गेट देयर इज Yes. क्रेजी टैलेंट सर, क्रेजी टैलेंट। मतलब भाई यार यहाँ मैं हूँ एक यूपीएस जैसे नॉर्मल से कॉलेज का एक फ्रेशर लड़का, जो मतलब जिसको लगा कि भाई 99.99 आ गया कैट में और ये होगा, तो मतलब ठीक कर रही है अपनी अच्छी जिंदगी। है, हाँ। वहां पे जब आप जाते हो तो देखते हो कि पहली बात तो कि 98.99 औरों का भी आया है, ठीक है। सभी का है। हाँ ठीक है, सभी का सब है, तो अच्छे हैं। that is taken out of equation कि या चलो हाँ, इसको हटाओ। वहां पे सब 99.9 से ऊपर है, 98.90 99.99 में कैट के टाइम डिफरेंस था, बट कॉलेज में एक बार एंट्री, हाँ एक और पॉइंट के ऊपर है अदर्स टू अंडरस्टैंड, एक बार कॉलेज में आ जाते तो डजंट मैटर व्हाट योर परसेंटाइल वाज, यस, इट्स यू आर फॉरगॉटन देयर। द मोमेंट यू, या यस, अब खत्म। अब उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आप इंटरव्यूज में भी बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका 19.99 है बगल वाले का सभी 98 है, तो कोई नहीं आपको प्रेफरेंस देगा कि अरे तुम्हारा 0.01 ज्यादा है। तुम्हारा तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उठा ठीक लिया। है। हाँ सर, तो मतलब इस लेवल के टैलेंट्स, इस मतलब अगेन इनिशियली मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, बहुत ही ज्यादा। जब ओके। 3 क्लासेस हैं, क्लास के लिए केस स्टडी होती है अहमदाबाद में सर, तो हम्म। आपको केस प्रिपेयर करके जाना है, तो एक केस में 1-1.5 घंटा लगता है प्रेप करने में। हम्म। तो 4.5 साढ़े 4 घंटे तुम अगले दिन की 3 क्लास की प्रिपेयर कर रहे हो, और आज की क्लास की जो आई है वो करना है, ठीक है। हम्म। उसके साथ आपके इतने सारे क्लब्स हैं, एवरी वन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट 3-4 हम्म। क्लब्स, हम्म। क्लब्स का काम है। अभी आपका आते ही शायद 2-3 हफ्ते बाद ही सीवी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपने समर्स नवंबर में होते हैं, एंड वी एंटर हम्म। कॉलेज इन जुलाई। तो हम्म। अगस्त स्टार्ट से ही ऑनवर्ड तो सीवी बन रही है, देन व्हेन यू आर मेकिंग अ सीवी यू थिंक यार मतलब अच्छा है, अपना कैट में 99.99 है और थोड़ा बहुत कॉलेज में इवेंट जीते हुए हैं, बढ़िया सीवी, अपने से क्या, अपने को क्या अपने टेंशन है, अपने हिसाब से, हाँ। सारे कंपनी अपने लिए बैठे हैं, ऐसा। बट व्हेन यू सी पीपल, आई रिमेम्बर मेरे स्टडी ग्रुप में एक बंदा था, देखिए हम्म। 12th में, गौरव गर्ग, क्लास 12th में उसने आई थिंक सीबीएसई में 3rd रैंक था, बैडमिंटन में उसने नेशनल लेवल खेला है, हम्म। और आई थिंक पीएनजी में काम कर रहा था व्हेन ही हैड कम, पीएनजी वाज अ ड्रीम कंपनी फॉर मी, For बिकॉज़ हाँ मार्केटिंग में मेरे को एंट्री marketing, करनी थी, तो बंदा he पीएनजी he छोड़ he के had आता already been there, 2 साल वर्क एक्स करके, एंड वो मेरे स्टडी ग्रुप का पार्ट था, एंड देन आई वुड लुक एट इट एंड थिंक कि मतलब ये वो सब कर चुके हैं जो मतलब मैं सोच वो रहा छोड़ हूँ के आए हैं, जो मेरा छोड़ के। ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम छोड़ के आए हैं। तो इमेजिन व्हाट द मेंटल स्टेट ऑफ, तो वो सर उस टाइम लगता है कि, और फिर उन लोगों की सीरीज देखो, हाँ, भाई हम थे कि कॉलेज लेवल पे जीत लेते थे या ज्यादा ज्यादा वो देहरादून लेवल पे नेशनल लेवल जीत पे आ लेते रहा थे, है बंदा। वो भाई नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे भी बैडमिंटन भी खेला है भाई साहब ने, और भाई साहब ने कोई सिंपोजियम भी किया हुआ है, और ओलंपियाड तो जीतने, अरे और आईआईटी दिल्ली के 9.5 या 9.6 पॉइंटर तो है ही ऑलरेडी। आप मतलब सोच रहे हो भाई, मैं मतलब हाउ विल आई, मतलब व्हाट एम आई डूइंग, नहीं हो what पाएगा मतलब। what what is the next fight back home? हाँ भाई एग्जैक्टली सर, सीरियसली मतलब आई डिडंट रियली क्राई, बट देयर वर डेज आई वाज Yeah. वेरी वेरी डाउन, हम्म। वेरी डाउन। आई थॉट यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, देयर इज नो वे आई शुड हैव कम टू अहमदाबाद, बिकॉज आई डोंट, एंड यूपीएस से मैं पहला बच्चा था जो आज तक गया था उस कॉलेज से अहमदाबाद में, मेरे बाद एक बच्चा गया है। हाँ, Okay. या तो मैं सोच रहा था यार, मतलब अपन इसीलिए शायद मेरे कॉलेज से कोई नहीं आता, वी डोंट बिलोंग हियर। आई एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, Okay. बिल्कुल। बट We are not good फिर enough, that's it, we आई are एम not good जस्ट नॉट enough. गुड इनफ, आई सीरियसली सर, कभी कभी अपने क्वेश्चन, यार ये बंदा है मेरे स्टडी ग्रुप में, ये यू अगेन हाउ यू क्वेश्चन, कोई डिस्कशन चल रहा है, टीम का 6 लोगों का स्टडी ग्रुप होता है सर उधर Uh-huh. अपना, Uh-huh. तो वो कोई पॉइंट बोलते हैं ना, तो मैं इतना वो हो जाता था कि अभी इसने ये बोला है, अगर मेरा अलग पॉइंट भी है और सही है, बट मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता था कि अगर एग्जैक्टली, ये बोल रहा है तो सही ही होगा, सही देखो अल्टीमेट तो यही है भाई। आप, क्योंकि ये तो ये सब करा हुआ है, मैं कहाँ बेकार कॉलेज का नॉर्मल बच्चा, है ना। ये यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था।
बट फिर यही था, सीनियर से बात करते थे। ये अच्छा है, अहमदाबाद का सर बहुत अच्छा है कि हम्म, सीनियर जूनियर इज अमेजिंग। आई डोंट थिंक किसी भी कॉलेज में इतना अच्छा होगा। आई ओके, टॉक पीपल इन बैंगलोर का, हम्म, सीनियर हम्म, जूनियर इंटरेक्शन इज नेक्स्ट लेवल गुड। मतलब वो लोग आपको हम्म, सच में आपके छोटे भाइयों की तरह रखते हैं कि अरे हम्म, इधर आया अभी, रात में बुला ले, चल पार्टी करते हैं, फिर हाँ, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये है वो है, अबे ये होता है तेरे जैसे, ऐसे था पिछले साल ये था उस सर। हाँ, व्हेन यू हाँ, लिसन ऑफ पीपल की ये लोग भी ऐसे थे, देन यू स्टार्ट गेटिंग थोड़ा भरोसा किया, ठीक है मतलब इनका भी लग गया था तो अपना। पॉसिबल है। हाँ, हाँ, मे बी शायद पीएनजी ना जा पाऊँ, बट हाँ ठीक है, थोड़ा हाँ, नहीं थे अपन भी निकल लेंगे। हाँ, हाँ, एंड हाँ, थैंकफुली मेरा समझ कोक में हुआ, तो मैं कोका कोला में ओके, हो गया। ओके, कोका कोला इज ऑफ कोर्स नॉट पीएनजी लेवल, बट बट इट्स देन कोका कोला इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड। या, आई सजेस्ट टू एनीवन हु वांट्स टू गो इन मार्केटिंग, कोका कोला का तो इज हम्म, अमेजिंग। हाँ। हम्म, तो हाँ, तो वही होता है कि यू स्टार्ट रिलेइंग एंड देन फिर बताते हैं कि ये सेमेस्टर सरवाइव कर लो, है ना। हम्म, पहला सेमेस्टर सरवाइव कर लिया था, इसलिए मैं 24 से 25 सितंबर को लास्ट एग्जाम था। हम्म, और उसके बाद मतलब उसके बाद हाँ, थिंग्स गॉट इजियर बाय बिकॉज ओके, आई had gotten used to things. I was not that overwhelmed because I हम्म, could see they are flesh and blood just like I am. हम्म, Of course they have more experience and they've been in हम्म, more, probably हम्म, from better colleges, but हम्म, ठीक है, they are flesh and blood, हम्म, they are wrong as well. हम्म, And हाँ, I मतलब use, आई कैन compete, I can compete. I can compete, it's not that हम्म, ठीक है। And every year people and everyone has self doubt. मेरे हम्म, शायद इन चीजों को लेके थे, लोगों के और चीजों के। हाँ, मे बी मैं डिफरेंट शायद रीजन। पर्सनली बहुत सॉर्टेड था। मैं हम्म, पर्सनली बहुत सॉर्टेड था कि मेरे को हम्म, मार्केटिंग करनी है। आई सॉ पीपल जिन्हें फाइनेंस भी करना है, कंसल्टिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, दे वर नॉट क्लियर, तो वो उस उसमें परेशान रहते थे। okay, तो एवरीवन and हैज these देयर ओन people, बैगेजेस। these people are supposed to be the best in the nation, and they still are confused कि क्या करें, मतलब ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सर, भाई वी ऑल ओके, हैव आवर स्ट्रेंथ्स। मतलब आई नो हम्म, पीपल लिसनिंग टू दिस विल थिंक यार ये क्या मतलब मोटिवेशनल बुक्स का ज्ञान पेल रहे हो, बट इट्स ट्रू, हम्म, वी ऑल हैव आवर स्ट्रेंथ्स। जस्ट हम्म, जस्ट अगेन ब्रेक इट डाउन, लुक एट योरसेल्फ कि हम्म, हाँ यार, मैं इस चीज में तो सॉर्ट हूँ ना, कि हाँ मुझे ये करना है। इसको देखो, ये हम्म, प्लेसमेंट के दिन रोते घूम रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, अपन आराम से बैठे हैं ना, इंटरव्यू पता है क्या करेंगे। चाहिए हमको, पता है क्या चाहिए। सबका हम्म, अपना है, सबके अपने हम्म, स्ट्रेंथ्स हैं। हम्म, हम्म, ओके, सो पहला 2 3 4 महीना जैसा गया वैसा गया, देन थिंग्स बिकेम नॉर्मल अगेन, you have a feeling that okay, you belong to the place, I've earned my place here, and फिर ठीक है, life goes on, then comes the placement season again. अब बात हो रही है मुद्रा की, किसका कितना लगा। जी। हाँ। तो अगेन हाई प्रेशर। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं उन चीजों में वीक था, बट एज आई सेड थोड़ी देर पहले, आई एम सॉर्टेड। यू तो वर सर, बी क्लियर इन योर। हाँ, तो पॉइंट ये है कि ना, थैंकफुली मेरे को ना, मनी इज नेवर बीन अ वेरी बिग मोटिवेटर फॉर मी। मतलब आई कम, मतलब ठीक है, अभी इतना है कि मतलब मेरे पे जितना कमाता हूँ, जिस स्टेज पे मैं हूँ लाइफ में सर, आई नो कि जितना मुझे हाँ, मिलेगा मस्त है। इट्स वेरी गुड। हाँ, एंड मेरे हाँ, जैसे बहुत ज्यादा जिंदगी में महत्वाकांक्षाएं है नहीं मेरी कि मुझे आते ही iPhone 14 खरीदना है जिस दिन मैच हम्म, के अगले हम्म, दिन ही, भले हम्म, 1.5 लाख का हो। मेरी हम्म, ऐसी जिंदगी में हम्म, है नहीं, तो हम्म, जितना आता है सर, मोर देन हाँ, एनफ आता हाँ, है। ये हाँ, क्लैरिटी मुझे आई थिंक शायद बचपन से माँ बाप ने मेरी सिखाई थी। हाँ, तो हाँ, मुझे मुद्रा में नहीं पड़ा, बट हाँ। एंड सेकेंडली हम्म। सर, बहुत ज्यादा ना डिफरेंस होता नहीं, मतलब कोई कंपनी 20,000 ज्यादा दे रही है, कोई अच्छा। दूसरी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगेन कुछ को छोड़कर, अगर आप मे फाइनेंस में बी। जा रहे हो, हाँ, मार्केट वगैरह में जा रहे हो, तो फिर वो है हम्म, कि फिर आप दे भी 14 14 घंटे रहे हो एक दिन के। एंड हम्म, अगेन मैं उस टाइप का हूँ नहीं नहीं मैं। दे रहा, नहीं मेरे मतलब पापा सरकारी जॉब कर रहे हैं, मैंने उन्हें देखा जिंदगी भर। भैया मेरे को भी मतलब मेंटालिटी मेरी वही है कि भले मैं 6 बजे प्राइवेट, घर आना है। मुझे हाँ, मुझे 6 बजे लैपटॉप बंद करके 6:30 बजे किसी का कॉल नहीं आना चाहिए कि कैन यू अटेंड अ क्विक मीटिंग प्लीज ऋषभ। ओके, नहीं चाहिए मुझे, मुझे आई तो कांट। 30,000 रुपए 50,000 रुपए कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क नहीं। मैं बिल्कुल आपके पास नहीं आऊंगा रोने की, प्लीज मेरे मेरे पीयर्स मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, आई नेवर कम। बट मेरे को 6 बजे के बाद, आई एम थैंकफुली, मतलब वही मैं बोला, जैसे मैं इतना ओपनली ये सब बोला, मैं अपनी इंटरव्यू में भी ये सब बोलता था हाँ, कि हाँ, आई विल हाँ, नॉट, मतलब इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। हाँ, बट आई आई डोंट वांट टू, आई डोंट I वांट don't टू। want to. It's my choice, हम्म, and मतलब हम्म, people हम्म, will think that's a lack of ambition. हम्म, Maybe for मे some बी, it's a lack of या, ambition, but हम्म, I'm very, मेरे लिए जैसे I've been, मैं 2.5 साल से घर पे हूँ, I've never felt happier in my life sir। मैं घर पे हूँ, मेरे माँ बाप के साथ हूँ। No money can substitute it। मेरे दोस्त हैं जो बेचारे रात में 12 12 बजे तक काम कर रहे हैं, हाँ, मैं हाँ। 6 7 बजे तक बंद करके टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सैटरडे तो संडे चलो, कोई बात चलो नहीं भिंडी करेंगे। भिंडी काटते हैं बैठ के टेबल पे, हाँ, देखा जाएगा। बिल्कुल टीवी चल रहा है, इंडियन आइडल देख रहे हैं मम्मी पापा के साथ बैठ के, और भिंडी पराठा खा रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं मतलब इट इज, आई नो बहुत लोगों के कॉर्पोरेट वही, अगेन एवरीवन इज एवरीवन हैज इन देयर देयर ओन, ओन हाँ, वही। या, मेरा ये एक बहुत, पता नहीं शायद अदर्स एग्री करें या नहीं, बट मेरे लिए ये मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं नहीं कभी पागलों की तरह पैसे के पीछे भागूंगा या भागूंगा। मैं ये अगर सेट सॉर्टेड, मैं बहुत सॉर्टेड हूँ इस चीज में, मुझे नहीं, मुझे शांति चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली मिल जाए, बहुत है।
बहुत this ज्यादा। is this discussion also happened in my household a few years back. तो my wife said कि यार मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम कहीं भी होते हो दुनिया में, लंच पे यार तुम घर आ जाते हो। हम्म। हम्म। मैंने कहा भाई, यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी पीपल हैव दैट Right. लग्जरी। Yeah, हाँ, कि कुछ भी काम कर रहे हैं, चल भाई लंच हो गया, चल लंच कहाँ, लंच तो घर पे जा रहे हैं। कहाँ आ exactly. उसका जो सुकून है सर वो कहीं नहीं है, गए? कहीं नहीं है। तो शी सेड कि मेरे को पिछले, आई थिंक तब 8-9 साल हुए होंगे, बोलते पिछले 9 साल से यू हैव बीन हैविंग लंच। मैंने कहा 9 साल, अरे आने वाले भी सब आई विल हैव यही लंच एट करना होम ओनली, द टारगेट इज टू हैव लंच एट एग्जैक्टली, होम। एग्जैक्टली। और नो मनी कैन सब्स्टिट्यूट नो फॉर, माय नो मनी कैन, मतलब वही है। एंड मतलब ये है कि कोई मतलब इतना है कि सर लोन जो है पढ़ाई का वो कट जाता है, उसके गॉड। अलावा कोई ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं लाइफ से कि and भैया and भाई। and and you are working anyway na, so that the career graph will take its own course anyway. हाँ, मतलब हाँ, हाँ, एंड मतलब वही है कि जैसे अभी मैं रिलायंस रिटेल में अभी सर, आई स्विच माय जॉब एन ईयर हम्म, बैक, आई थिंक 12 अक्टूबर को ही चेंज किया था मैंने, लास्ट ईयर को एक अच्छा साल होने ओके। वाला था। हाँ, हाँ, तो मतलब मैंने इंटरव्यू किया था तो आई हैड ऑफर्स फ्रॉम स्टार्टअप्स, एंड स्टार्टअप्स एक्चुअली मुझे सर 50-60% हाइक दे रहे थे, जो मैं अभी हूँ रिलायंस रिटेल, क्योंकि ओके। तब बहुत पैसा था मार्केट में, स्टार्टअप को हाँ, चाहिए था। और फिर पैंडेमिक में गया है, थोड़ा नीचे गया हाँ है। वही सर, वही तो हम्म, मतलब बहुत बढ़ा के पैसा दे रहे थे। बट फिर वही था, बट वहां पे ये क्लियर था कि एक तो कि मतलब हाँ, हाँ, इट विल बी टफ कि नाइन ये, टू टेन 9 to 11, 13-14 घंटे का दिन होगा बेटा, हम्म, एंड सैटरडेज कैन बी वर्किंग। हम्म, आई वुड रादर लेट गो ऑफ दैट 50-60% ये, का एक, आई वुड कि भाई रिलायंस रिटेल है, हम्म, बहुत खुश हूँ एंड शांति से हूँ यहाँ पे, हम्म। इतना है कि हाँ मतलब पैसा ठीक दोगे एंड मैं, मेरी अपनी फैमिली लाइफ को ही है। नहीं लगता, हाँ मेरी फैमिली को नहीं ही नहीं अभी, लगता कि दिन भर लगे हाँ रहते अभी अभी लैपटॉप। अभी आई डोंट रिमेम्बर, some senior guy he said कि forget about everything, just work 18 hours a day. हाँ हाँ I don't think that I mean we बॉम्बे should, शेविंग कंपनी का जो सीईओ, हाँ हाँ उनके हाँ लिए सर अच्छा है ना, क्योंकि आप कंपनी ओन करते हो, आप हाँ, कंपनी ओन ओन कर रहे करते हो तो हो, आप करो, बिल्कुल हाँ करोगे, करो आप क्योंकि करो, बट कल को आप एक्सपेक्टिंग दस अ करोड़ यंगस्टर कमाओगे हु तो इज, हाँ, एग्जैक्टली, दस कोई करोड़ कोई, कमाओगे तो 5 करोड़ तो आपकी पॉकेट में जाता है ना, तो यू एग्जैक्टली वर्क। वो एग्जैक्टली जो काम कर रहा है, जो आप मेरे जैसे से काम करा रहे हो, मुझे आप हार्डली 5 लाख दोगे उसमें से, एग्जैक्टली। ठीक है, मैं उतने आवर्स क्यों पुट इन करूँ, राइट, व्हेन देयर इज अ 100x डिफरेंस एंड व्हाट विल गेट आउट ऑफ इट इवेंचुअली। either you reduce the gap. एग्जैक्टली, मतलब गिव हाँ मी सम इंसेंटिव हाँ, ना। अरे एंड अभी अभी क्या हुआ ना ऋषभ, I had a discussion with one of the guys who was starting up with an institute, and he said कि सर ये सैलरी वो करके, तो मैंने कहा देख, my problem, understand my problem is that 3-4 years from now maybe you will be driving an Audi or a BMW, I will not, I'll still be on my Activa. So why should you expect me to be there in the office for 12 hours? एग्जैक्टली, Either you give me another maybe a smaller or you can say a lower model of Audi, then I'm in for it. But जब मेरे को Activa से चलना है boss, I am a scooter faculty, then why should you expect me to be there all the time? कि सर सुबह आएंगे रात तक काम करेंगे, क्यों करूंगा मैं? और भाई हाँ, सर, और ये 5 करोड़ मुझे एक तरह से वैसे चाहिए, वैसे भी नहीं चाहिए मुझे। करूंगा क्या? अरे समटाइम्स ना यू आर लाइक, कभी पैसा की, जैसे एक डिस्कशन था दैट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे गॉट 5,000 करोड़ का फंडिंग मिला, तो नो वी गाइस आर सिटिंग एंड सेइंग कि 5,000 करोड़ में अच्छा क्या करेंगे, तो भाई यार एक झूमर लगा, हमारी हमारी अकल चलती नहीं उतने पैसे पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अपना दिमाग ही नहीं। वही तो सर, सब बरेली लखनऊ में बड़े हुए हैं, वहां पे ये सब देखा ही नहीं है कभी। ठीक है, सरकार, सरकारी घरों में रहूं सर, सरकारी घर आपको दिखाऊंगा ना, मतलब ऐसे हम लोगों के घर होते हैं, हमने कभी ये सब रेलवेज, देखा नहीं। आई एम अ रेलवे बोर्ड, आई एम अ रेलवे बोर्ड। एग्जैक्टली, अब देखिए आप तो मैं समझ रहा हूँ, मेरे नाना जी वॉज रेलवे, आई नो कि क्या कैसे, तो दिमाग ही नहीं चलता उतना भाई उतना जो कि मतलब सीरियसली, मतलब समटाइम्स यू सिट एंड थिंक कि अच्छा चलो इतना पैसा अगर आता है तो करेंगे क्या उसका, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद इट? हाँ यू हैव भाई। टू आंसर। तो देयर आर फ्रेंड्स की घर पे भी रह रहे थे, अभी ऑफ कोर्स घर रहे हम सब, तो हम सबके सेविंग्स है कि भाई हाँ मुंबई बैंगलोर में नहीं रह रहे थे, तो रेंट के पैसे बच रहे हैं, रहने के घर हाँ, पे तो भाई फ्री में मम्मी पापा का खा रहे खिला हैं। खिला रहे हो लोग। अभी भी उन्हीं के पैसे पे जी रहे हैं। बट तो वही है कि बट देयर आर पीपल, मेरे फ्रेंड्स की भाई किसी को ऑडी लेनी है, किसी को हाँ हाँ इट्स फाइन, मतलब आई डोंट जज देम फॉर इट। हाँ हाँ बट हाँ, है है ही नहीं सर, क्या करूंगा। they आप should आगे also डिजायर ही चलाते हैं, मैं हाँ क्या करूंगा पैसे ढूंढने के एग्जैक्टली, लिए। they should also accept कि there are people like us, वो वही तो मे बी इतना एफर्ट शायद उस चीज के लिए नहीं डालेंगे, मे बी फॉर समथिंग एल्स, हाँ, बट नॉट फॉर दैट, नॉट फॉर दैट। मतलब ग्रेट वही ग्रेट। मतलब अगेन जैसे कि मतलब जस्ट बी क्लियर की चाहिए क्या यार, मतलब अपने को हमेशा से ताकि यार शांति चाहिए लाइफ में, हम्म, मतलब क्लियर करो, अगर पैसे के पीछे भागना है तो फिर मतलब भागो। ऐसे करो कि हाँ
कि मतलब तुम 4-5 साल में इतना छाप लो कि मतलब तुम्हारे खानदान में टोटल किसी ने नहीं कमा, एंड यू कैन डू दैट, डोंट वरी, You यू can do कैन that, डू yeah. दैट इफ यू आर विलिंग टू With the kind of educational background, it is possible. It is एकदम possible. है। या फिर मतलब मे बी तुम 4-5 साल में, बट अगर तुम्हें चिल करोगे ना, तुम Hmm. 7-8 साल में भी शायद उतना कमा लोगे और चिल करते हुए कमा लोगे। तो आई वुड Exactly. रादर गो दैट वे, That way. क्योंकि 2-3 साल में मेरे को कोई आफत नहीं आ रही है। मैं मतलब अभी बहुत यंग हूँ, अभी 27 साल का हूँ मैं सर। मतलब लोन मेरा चुक गया, I'm ये cool. बहुत खुश हूँ मैं, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है मेरी भाई, चलने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले दो। Okay. Were there any friendships on the campus? हाँ हाँ सर, अच्छा. वेरी, यू गेट वेरी गुड पीपल देयर, अच्छा. वेरी गुड, एंड आई एम लकी। मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बने, बट हाँ जो बने वो मतलब फॉर लाइफ वाले टाइप्स बने अभी तक। Acha, Rishabh, what is this very common thing again that everyone has spoken to in this series of conversations? Uh, Everyone has said that they got lucky. How lucky one can get. I mean, लक, लक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, एंड किस टॉपिक में लकी हुए बहुत everybody सब्जेक्टिव। everybody has said that they got lucky. Everyone. I got lucky. I think I got lucky. I think it was pure luck. क्योंकि सर पता है क्या, अभी मैं अगर कैंपस के फ्रेंड्स वाले टॉपिक पे हूँ, तो हाँ. मतलब देखे हैं लोग कि मतलब देयर वर पीपल जिनके 100 दोस्त हैं, आज उनके सिर्फ 1 या 2 दोस्त हैं। कैंपस में सबसे दोस्ती करते थे, तो मेरे हम्म. शायद कैंपस में भी 5-6 दोस्त हैं, आज भी वो वही अभी भी 5-6 है. दोस्त हैं। वो अभी भी तो है. आई थिंक आई गॉट लकी इस सेंस में। बट हाँ मतलब वो है, बहुत लोग हैं वहां पे, देयर जस्ट देयर टू मेक कनेक्शंस की बाद हम्म. में लाइफ में हेल्प करेगा। हाँ, एट द बैक ऑफ द माइंड वो है कि चलो बना के रखते हैं, क्या पता कब काम पड़ जाए. हम आ जाए, But एंड I वो don't think कहते हैं, that works out in life. I don't think that works out in life. आई डिडंट टॉक टू मेनी पीपल, एंड अगर हम्म. आज भी मुझे रेफरल चाहिए हो या कुछ चाहिए हो, तो जस्ट लिंक्डइन पे मैसेज करूंगा एंड they'll refer. तो ये हम्म. people aren't, they don't inherently hate you, they, people will help you Yes, out. they will help you. They will help you. I also agree with this because if you're genuine and sincere, people will go out of their way to help you. वो मतलब मदद करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब ओके इट इज कट थ्रोट, इट इज ऑल वेरी कॉम्पिटिटिव, बट देन अगेन people are still good. People are still good. But there is enough for everyone to हाँ, eat, enough for मतलब everyone. हाँ. कोई वो दिक्कत कोई नहीं कोई है। कह रहा था कि देयर आर सर्टेन कंपनीज वो इतने बच्चों को पढ़ा रही हैं, इतना बिजनेस है, एंड आई टोल्ड देम कि यार इंडिया को ना इनके जैसे 100 कंपनी चाहिए, द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी बिल्कुल हैव, एक बंदे के बस का है ही नहीं पढ़ा पाना यार. हाँ बिल्कुल मतलब इफ यू टॉक अबाउट एनी यूनिकॉर्न, इंडिया नीड्स बड़ी हंड्रेड्स ऑफ देम टू बिल्कुल कवर absolutely. कवर द एंटायर नेशन. इतना तो मैंने कहा उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि यार सब लोग खा जाएंगे, मोनोपलाइज कर देंगे. मैंने कहा मैं घर पे बैठा रहता हूँ, स्टिल पीपल फाइंड मी. They'll find them that you हाँ. themselves खुद ढूंढ के आ जाते हाँ, ढूंढ हैं, लेते राइट। हैं. तो हाँ इसका मतलब कि मार्केट बहुत बड़ा है यार, आप अपना काम करते रहो ना. काम करने को बहुत है, काम करने को बहुत है. यू चूज हाउ मच यू वांट टू वर्क, बट इट्स एकदम नॉट एज कि काम ही नहीं है. काम है, अगर आपको आता है करने, तो आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क. आराम से कोई मतलब बहुत मतलब, एंड अभी तो इतने कंपनी इतने स्टार्टअप मतलब बहुत है भाई, देयर इज इनफ फॉर एवरीवनस नीड, नॉट फॉर एवरीवन. एवरीवनस ग्रीड। मान लीजिए तो हाँ, बहुत काम 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 चलने भर का सबका है. बहुत है, आराम से है, खुशी खुशी कर लोगे खुद। Long conversation we have had. पता नहीं चला सर, हाँ, ऐसे पता नहीं चल रहा है, और अमेजिंगली ये नहीं पता चल रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2016 दैट वी आर टॉकिंग. एग्जैक्टली वही तो, मतलब वही हाँ, मतलब पता नहीं, तभी शायद आपसे मैं बात करता था, जैसे आई रिमेम्बर मेनी पीपल यूज्ड टू कम अप टू यू एंड लाइक इंग्लिश में बात कर रहे थे आपसे सर, या एकदम एकदम फॉर्मली बात करते हो जाते हैं। मतलब हम लोग कई बार ऐसे ही मतलब क्लास के बाद ही बैठ के, क्योंकि मैं भी घर जाके मम्मी पापा के पास जाता हूँ, बैठा हूँ एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ, ऐसी आप भी बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर की लखनऊ की बातें. बातें कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है, इट ऑलवेज फेल लाइक दैट कि हाँ एकदम मतलब ठीक है। हाँ, ऑफ यही था. कोर्स हाँ एक्चुअली यही था. हाँ, हाँ. यही होता है। I believe people will benefit from listening to you, whatever you said, and of course they have a choice. But then जो हमारे साथ हुआ हम तो वही बताएंगे. एग्जैक्टली exactly. मतलब हाँ. वही है, सारे एक्सपीरियंसेस आर पर्सनल, मतलब बिल्कुल वो जो एग्जैक्टली. कैवियट्स आता है वीडियोस में कि हाँ. हाँ ये हाँ. पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस, हाँ. तो सेम। चैनल का इससे कुछ लेना देना नहीं. एग्जैक्टली, ये इस बंदे की लाइफ में अपनी में हुआ है, तो हाँ मेरी लाइफ में यही हुआ है। ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एंड एज Yeah. ऑनेस्ट एज आई कुड हैव बीन, एंड हाँ इट एक्चुअली इट वाज ग्रेट सर। एक तो आपसे इतने टाइम बाद बात करके यहाँ बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो एंड गया. हाँ मतलब So अगेन आई डोंट नो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बैक देन, बट आई जस्ट लाइक टू थैंक यू अगेन कि तब आपने बहुत टाइम निकाला है, काफी गाइडेंस दी मेरे को कई अब बार। कम से कम कुछ टाइम तो तूने निकाला. वही मतलब हाँ, पता नहीं मैं तब आपको थैंक करा था या नहीं, बीन टू लॉन्ग,
But really, thank you for guiding me through those days. You did. Arey, back then also you did. But seriously, those are very tense times, and it does get tough for people. Yeah. It really does. Okay, Rishabh. Maybe a few months down the line, we have got something else to talk about. Absolutely, sir. Yep. Chalo, bana. Yeah. Thanks a lot for being there. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye. Bye. I hope you heard the entire conversation and please तो सब्सक्राइब कर लो. देखो सेटअप भी चेंज किया, थोड़ा बहुत सुंदर बना दिया है. एंड आई थिंक वी आर ब्रिंगिंग गुड स्टफ टू यू, सो वी डिजर्व टू बी सब्सक्राइब्ड. कर लो यार. सी या, बाय.